अस्सलाम वालेकुम लेडीज जेंटलमैन। कैसे हैं आप लोग सब? मेरे साथ हमेशा की तरह ड्रामा ट्रैक में सदफ हैदर। सदफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? Assalamu alaikum, Mavish. How are you? I'm हाउ इज good. योर वीक? यस, ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ इज Huh, योर वीक? हाउ इज एवरीथिंग? crazy week, but there you go. I hope I can answer the questions really good and have a good discussion Hmm. because kind of I wasn't able to see as much as I could. It's okay. I saw a lot of stuff in passing, and I there are only few dramas that I really paid attention to Hmm. with like all my eyes and ears. So we'll start with our favorite. मैं मंटो नहीं हूँ because वो खत्म हो रहा है। और मंटो जो है वो एक बहुत बड़ा ट्रेन wreck है. Unfortunately, I really was hoping that I did not have to say these words when Manto ended, but here we are. Were you able to catch Manto? Yes, I did. I mean, when I say I wasn't able to catch all the dramas, I mean, I caught the main ones, but like thode se chote dramas that I like to keep up with, I Hmm. wasn't able to kind of give them the attention they deserved, like Right. Pama, Hmm. right? So, yeah, I watched Manto, and I have a feeling that हमारे जो disappointments है is because we've been sold a bill of goods. We have been told कि ये story होगी, ये होगा, Hmm. right? Hmm. And it kind of deviated from that. And then if it did deviate, उसको justify नहीं किया उन लोगों ने. And Hmm. as regular drama watchers, हम तो बहुत बारीकी में देखते हैं. Right? Hmm. Maybe आम public को इतना notice नहीं हो रहा. And then of course there was the lack of chemistry between the leads. I mean, nobody is praying and hoping कि हाय अल्लाह मंटो and महमल की ना मिलाप हो जाए. It looks weird, But and did you neither of see them. like the second last episode and all the things that Yes, happened? And I did. I mean, I'm trying to understand what that was about, but there you go. that's so sad about the entire product is that it has the best of the best in the country. You have your great Hmm. director like Nadeem, you have Humayun, you have Sajal, you have Saima, you have Sanam Saeed, you have Azan Sami Khan. एंड आई ऑल्सो फील लाइक अजान समी खान और सिराज अमृतसरी जितना बड़ा इन्होंने विलन सो कॉल्ड बिल्ड Hmm. करने की कोशिश की थी, उस सब में इन तिलों में तेल नहीं है जिसे कहते हैं ना। वो किसी में भी वो बात ही नहीं, एक दफा नहीं डर लगा मुझे इन लोगों से, सिवाय ये Hmm. कि कभी वो मेनेसिंग जब लगे तब तक ड्रामा अच्छा था। क्योंकि आपके ड्रामे का प्रेमिस वाज बेस्ड ऑन गुड वर्सेस इविल, लव वर्सेस इविल। And when did you ever have those moments? Where did that ever come through? The message never really came through. There was absolutely no chemistry, and it is because it isn't because वो age gap था, क्या था, कुछ था, नहीं, ये बात नहीं है. It is because the story didn't justify it. And Hmm. again, I used to think कि अरे दो खूबसूरत लोग होंगे तो केमिस्ट्री तो बन ही जाएगी. मतलब हुमायूं is amazing and Sajal is amazing, but like hello, this shows. I think Manto is a great लेसन इन दिस दैट अगर आपकी केमिस्ट्री, दो खूबसूरत लोग भी आप आमने सामने खड़े कर दें, लेकिन अगर आपकी कहानी उससे इंसाफ नहीं कर रही तो फिर कहानी का कोई मकसद नहीं है. अ, इस रीसेंट एपिसोड में जो कुछ हुआ उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं. आई थिंक कि Hmm. ओवरऑल ये एपिसोड बहुत वीक थी. आज इस वक्त लास्ट एपिसोड आने वाली होगी, हम जिस वक्त ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके थोड़ी देर बाद ही लास्ट एपिसोड आ रही है. तो वो भी मुझे यकीन है कि कुछ खास उसके अंदर नहीं होएगा. इतना सारा, इतना टाइम हमने लगाया इस ड्रामे के ऊपर. आई थिंक दिस इज व्हाट द 25th एपिसोड एंड देयर 25th. हाँ. एंड इस हिसाब से दिस हैज गॉन ऑन फॉर 2 months, राइट? टू थ्री मंथ्स. Hmm. हाँ. और About मोर, 6 months, I think. मोर मोर Yeah. मोर लाइक 4 months. हाँ, Hmm. 4 months. तो 4 महीनों में हमने बड़े कोई. They couldn't establish their premises. वो जो एक फाउंडेशन नहीं होती कि this is why this is happening. They couldn't establish them. नॉट एट ऑल. अच्छा, फर्स्ट कपल ऑफ एपिसोड में मैंने भी डिफेंड किया. मैंने कहा नहीं नहीं, आउटरीच गलत है, बिकॉज नहीं, हमें वी शुड सेपरेट आर्ट फ्रॉम द आर्टिस्ट. नाउ आई एम लाइक नो, डू नॉट. I feel that in the beginning, you were saying that in the beginning, we tried to defend this show because we want to give every show a chance. और I have to admire नदीम बे कि इस खिचड़ी को उन्होंने कुछ तड़के लगा के ना तो चलो गुजारे माफक कर दिया. But the essential premise, and I say this all the time, missing scenes. देखो मे बी वी आर बीइंग प्रिजम्पशस कि हम राइटर्स को एडवाइस देते हुए बट एज द एंड यूजर of your product, let me see if we had a few scenes of say Mehmal rejecting this life, if we हम्म.
a few scenes of Khoon Kharaba in which we saw innocent people dying. And you realize how violent and terrible these people are. If we had a few scenes of गुंडागर्दी और इनके जो कारोबार, ये जो इतने बड़े बड़े महल खड़े हैं और इतनी इज्जत की जिंदगी किस बल पे जी रहे हैं? Where does that money come from? It comes from drugs. Does it come from भत्ता लेना, भत्ताखोरी, right? Is it land mafia? वो तो ऐसे लगते हैं कि शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन है वो, अच्छा, right? why is every woman in this universe acting like a courtesan? I really don't know, and I have to say कि साइमा जी उनकी बहुत मैं इज्जत करती हूँ बिकॉज शी इज़ एन अमेजिंग एक्ट्रेस एंड शी इज़ वन ऑफ आवर ट्रेजर्स। बट उन्होंने थोड़ी देर के लिए ये थोड़ा सा अदा से बात करनी, और ये वो शुरू में अच्छा लगता है बिकॉज इट वाज लाइक शी वाज हैड अ सीक्रेट, नहीं, बट इट मतलब ये टर्न जो लाडली पे जो इनका, ये जो आउट मीम्स बने हैं लाडली वाली बात पे, बिल्कुल सही बने हैं, ये बिल्कुल सही बने, बिकॉज इट्स बिकॉज रिडिकुलस, इट्स हर रिडिकुलस। हर बात पे शी इज टॉकिंग एज इफ शी हैज सम काइंड ऑफ राज छुपा हुआ। यू रिमेम्बर यू एंड आई वर स्पेक्यूलेटिंग, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, राइट? एंड देन द अदर पर्सन इज थिंकिंग एंड द व्यूअर्स आर थिंकिंग, हम्म मुझे लगता है कोई राज है। कुछ यू निकलेगा, रिमेम्बर? कुछ यस, निकलेगा। हाँ, वो कुछ नहीं राइट। निकला, कुछ भी नहीं निकला। अच्छा, और एक और जो डिसअपॉइंटमेंट मुझे इन सीन्स में हुई है, जैसे खलील साहब को कहा जाता है कि बड़े जबरदस्त डायलॉग राइटर हैं, एक डायलॉग बिल्कुल वो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ चीजों में उनकी होती है मजे की चीजें, लेकिन भाई इतना मजे का तो हर राइटर ही लिख लेता है। ठीक है, और कहानी की जहां तक बात है, तो कहानी, मैं तो नदीम बेग साहब से भी सवाल करूंगी, कभी जिंदगी में उनसे मिली तो मैं उनसे भी सवाल करूंगी कि जब ये कहानी आप बना रहे थे या क्रिएट कर रहे थे, तो फिर क्या उस वक्त आपको लग रहा था कि ऑडियंस इसमें से क्या निकालेगी? क्योंकि वो तो नहीं मिला हमें। अब आप ही बता दें कि आपको क्या लग रहा है कि इसमें से निकलना चाहिए था, जो हमने नहीं देखा। हमसे कोई मिस्टेक हो गई, हमने क्या किया, लेकिन सदा पूरी कहानी में जो जो जिस तरह के डायलॉग थे वो इतने पेनफुल थे। ये मिसकंसेप्शन लोगों का कि ये दुनिया के बेस्ट डायलॉग राइटर हैं, खत्म होना चाहिए। ही इज अ गुड राइटर, ही इज अ डिसेंट राइटर, ही इज गिवन गुड हिट्स। मगर ये ऐसा क्या सर पे चढ़ा लिया गया है, खुदा ही बना देते हैं, फिरौनियत की लेवल पे आ जाती हैं चीजें कि हम किसी को कुछ बोल ही नहीं सकते। हम नक्कादी का काम ही नहीं कर सकते, ये कोई दरबारी सिस्टम बना देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इनको कोई नहीं कुछ बोलेगा, हम काम भी इन्हीं के साथ करेंगे, हम अगले प्रोजेक्ट्स भी इन्हीं को देंगे। अच्छा, ये जितने मैं रिव्यूज भी देख रही हूँ, बेचारे सिर्फ मीमर्स बैठ के मजाक उड़ा रहे हैं, रिव्यूअर्स ने तो कुछ नहीं मुझे लगता है कुछ बोला है खास। मैं नहीं देखती इतने, ऑलबीएट मुझे प्लीज आप कमेंट्स में बताएं गाइस कि हम लोग गलत हैं या नहीं। मुझे तो नहीं लगता इतना कॉल आउट भी किया जाता है उनको कि ये और अगेन मैं कैंसिल कल्चर और कॉल आउट कल्चर के बीच में एक चाहती हूँ कि हमारी कोई इकोसिस्टम बने कि जहाँ पे हम लोग एक तरीके से बात कहें भी और लोग बात सुने भी, अंडरस्टैंड करें कि हम पागल नहीं है जो ये बातें कर रहे हैं, या वो अरे वो चार लोग अपना यूट्यूब चैनल खोल के बैठे तो इन्होंने भी यूट्यूब चैनल पे खोल के बैठ लिया तो क्या बड़ी बात हो गई। जेन्यूनली हम इस क्राफ्ट को इतने अरसे से फॉलो कर रहे हैं, हम जेन्यूनली पर्सनली भी इन लोगों को जानते हैं, और बहुत सारे लोगों को भी मैं जवाब देना चाहती हूँ जिन लोगों ने ये कहा था कि आप गलत कह रही हैं और ड्रामा अच्छा नहीं है। जब ड्रामा अच्छा था हमने उसकी जो अच्छी बातें हमने उसकी राइट। तारीफ भी की, और जो चीज अच्छी नहीं होगी हम उसकी बुराई भी करेंगे। इस ड्रामे में जो अच्छी बात थी वो हुमायूं का स्टारडम था, सजल का स्टारडम था, साइमा का स्टारडम था। बहुत जगह वो बड़ी मजे की चीजें बनी, बहुत जगह बहुत मजा आया देख के। लेकिन जहां से वो डाउनहिल गया, वो डाउनहिल गया, और मैंने बिल्कुल बोला और मैं आगे भी बोलूंगी, और मैं पर्सनली भी कम्युनिकेट करूंगी उनको कि यार ये दिस डज नॉट वर्क, व्हाट यू थिंक वर्क डज नॉट वर्क। दे हैव दिस, वो कहते हैं ना कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एज लीडर्स, और ये लोग हमारी इंडस्ट्री के लीडर्स में से हैं, राइट? दैट यू आर सराउंडेड बाय यस मैन, हम्म। दैट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। एंड हम्म। आई फियर दैट बस कहना हाँ जी खलील साहब की नई स्क्रिप्ट आ रही है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ evaluating think whether this will work, whether this will be justified हम्म। or not, because this has happened twice now in Gentlemen and in this, and सुन मेरे दिल, जेंटलमैन, मेरे नाउ दिल दिस, three how times. many how many times will it take for people to understand that this is not good writing, this is not good work? Also, it's not that Khalil Saab won't write well again. He probably No, he, will. look, Intelligent man. I think if he can just listen, you remember we constantly used to say this, and Manto had so many great things in it. If he Right. just listened, I don't think he listens. I don't think he thinks that he's, I think he thinks he's beyond reproach.
which is why he doesn't listen, which is why we see debacle after debacle. And I No, and I want to point out something very good you said. okay. You said that these guys I set no, you said that these guys set this pattern and they're leaders. I Hmm, want to tell everyone that this is how dangerous this is. You've hmm. created a drama with your top stars, with your top, people in the country, top teams, top Which is channel. basically empty. It's empty. It isn't just empty, it's full of venom. Hmm. It's venomous because it has such veiled messages of hatred against women. Also, it is showing an entirely inappropriate, unjustified, ridiculous relationship between a student and a teacher. When you are showing that, you are opening 20 doors for low budget, ridiculous dramas that are going to be even more irresponsible. That's a uh, very good point. एंड दे Very. आर गोइंग टू से कि देखें मंटो तो लाया था ना 12 की रेटिंग, लोगों ने तारीफ भी कर दी, लोगों ने अच्छा भी कह दिया। हुमायूं सईद ने जब ये ड्रामा कर लिया, सज्जल अली ने जब ये ड्रामा कर दिया, नदीम बेग ने, सिक्स सिग्मा ने, ARY ने ड्रामा कर दिया, तो एक्सप्रेस टीवी या आन टीवी, व्हाट स्टॉपिंग देम फ्रॉम शोइंग अ टीचर वॉक इनटू अ रूम एंड अ गर्ल रिंग वाओ, नाउ आई नीड टू फॉलो इन लव विद दिस It गाय। won't be Express and it won't be on. They actually have higher standards. I would say Geo. Geo Hmm. तो is but Geo So, has already done so many terrible things with Sun Mere Dil, with Tere Bin. I mean, I can't with that formula. But I do want to say, and I don't want to talk more about it. We'll talk it when about more about it when it ends next week. I think we hmm. spent enough time on it. I think that this is such a waste. It's a travesty. I'm so disappointed in how this drama ended. I had such high hopes. Even until the beginning, I was like, नहीं नहीं अच्छा अच्छा कुछ निकलेगा, कुछ मजे का निकलेगा। मंटो साहब विलन बन गए, फरहाद अच्छा हो गया है एंड में। एंड आई सॉ योर ट्वीट एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स गोना हैपन कि फरहाद इज गोना गेट मर्डर्ड बाय हजरा यामीन's dad. Well, I don't think that Farhad अच्छा हो गया. I'll disagree with you there, right? फरहाद किसी तो साइड से कुकी भी बनाया हुआ है उसको, नहीं. टेडी बेयर बनाया हुआ है, बैठ के चाय तो ला दो, मैं तो उसको कुछ नहीं कहूंगा। He's a terrible person, and I think he's maintained his cowardice and I terribleness. still like you, Long. Azan. I still like you, Azan. I can't. Why did, oh God, Actually, it's just, Azan and Nameer have been the most consistent Nameer, ones. Oh Nameer. man, Oh my God, Nameer. Wow, wow, Nameer, wow. Like like when that moment when she comes and she hugs him is stunning. Like that dude needs to do bigger dramas, better dramas there towards. is another controversy at the moment. And when isn't there a controversy on social media? Because that's social media. But there is a slight controversy, and I saw it last week. मैंने देखा था. People were saying the interaction between Sajal and Nameer was more like lovers rather than brother and sister. Now, they can't help it if both of them are really good looking and they have screen chemistry, right? But Yeah. at the same time, I did not see this. I mean, I remember when I saw the intensity in Bacha Begum and everybody jumped on me because I remember Farhan Said holding what was supposed to be his older sister and shaking her. तो मुझे लग रहा था कि maybe you have the wrong looks, right, Farhan? Hmm. But because he really knows how to bring the intensity, whereas Nameer बेचारा तो I think he was kind of like, very soft. I और वो I don't I बच्चा didn't feel any of this between था. either of these two dramas. I think that Farhan and Zara were very great as siblings, and उनको देख के ये जरूर लगता था कि they should definitely in the future act Right. off each other sometime. I really hope that happens. They're great actors and they look beautiful, both of them. As far as Sajal and Nameera are concerned, sure, why not? And I think that we have to understand that when we're watching two actors, we're watching two actors. They're not really बहन भाई. They are No, not Behan Bhai. They are not Mia Biwi. They can, and so many actors have done it. They've played Behan Bhai on screen and then they've played lovers later. That's fine. Aishwarya Rai, Shah Rukh Khan, mm, Ranveer the Singh, most and unbelievable Priyanka. Bengali as well. Yeah, exactly. So I think that that's part and parcel of the thing. I do wish, and I think कि ये तब हुआ था, casting तब हुई थी when Nameer wasn't this big. As a Hmm. star, Nameer had really became big after Qarze Jaan because Manto, by the way, 3 साल से शूट हो रहा है। Oh, that explains a तीन lot. साल से शूट हो रहा है। आई थिंक ये जो अभी 2-4 दिन पहले के सीन गए हैं, ये सीन पता है आपको कब शूट हुए हैं? ये ट्वेंटी Hmm. ट्वेंटी थ्री के किसी टाइम पे शूट हुए हैं। अभी जो 4-5 दिन पहले जो सजल ने पिशवास पहना हुआ है, और वो एक और भी सीन है कोई और भी कोई सीन है जो मुझे पता है कि वो 4-5
तीन साल पहले शूट हुआ है। तो वो मुझे लगता है उस वक्त नमीर बेचारा बिल्कुल ही फ्रेश था, हम्म। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये अब एक इसका एक अलग इम्पैक्ट आएगा। होता है, बड़े स्टार का अपना इम्पैक्ट होता है। Yeah, I can tell in the dialogue delivery because his dialogue delivery in Karse Jaan is much इज better. सो Here मच too we बेटर। see, you know, it हाँ, बट needs a bit कर्जे of जान इज work. रीसेंट, कर्जे जान वो शॉर्ट, वही जो टाइमलाइन होती है, अभी शूट हुआ फिर अगले 6 8 महीने में एयर हो गया। लेकिन मंटो इज वेरी ओल्ड एंड मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आगे बढ़ते हैं बिकॉज वी गॉट अ लॉट ऑफ ड्रामास टू डिस्कस, कि प्लीज रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ले लें आप। ये मैं ये नहीं अगेन कह रही कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप नहीं होती, लेकिन आपने कहीं भी उस प्रॉब्लमैटिक एजेंडा को एड्रेस नहीं किया। आपने कहीं भी उस कैरेक्टर की मेस्टअपनेस को एक्सेप्ट नहीं किया। आपने कहीं भी ऑडियंस को ये नहीं बताया कि साइकोलॉजिकली एक लड़की जो सोशल नॉर्म्स तोड़ती है वो इतनी नॉर्मल नहीं है, वो इतने नॉर्मल घर से नहीं आई जब ही वो सोशल नॉर्म्स तोड़ रही है। हमारे यहाँ घर की बच्चियां जा जा के अपनी टीचरों से मोहब्बत नहीं करती। और मेरी समझ में नहीं आता खलील साहब जो माशरे को लेक्चर देते हैं जिसमें वो इमेंसिपेशन ऑफ फ्रीडम की बातें करते हैं कि हम औरतें तो कुर्बान होती हैं मर्दों की लड़ाइयों में एंड दिस एंड दैट। आई एम सॉरी, दिस इज टू लिटिल एंड आई डोंट नीड इट एनी मोर। आई डोंट थिंक दैट he's qualified to teach women and men about gender and about ideology and about how society ये works. खलील साहब जो है ना, वो तो खलील साहब है, राइट? आई आई Hmm. आई एम टायर्ड ऑफ क्रिटिसाइजिंग हिम बिकॉज वो तो है, राइट? इट्स लाइक सेइंग, वेल, The sky is blue. व्हाई इज दिस मग लाइक दिस? ये तो मग है, इसमें चाय पड़ती है, ये मग है, राइट? व्हाट आई वांट टू आस्क इज व्हाई हुमायूं सईद, नदीम बेग एंड द प्रोड्यूसर्स डू नॉट थिंक, Because okay, they keep unfortunately hitting big numbers with his films, so they think that. do But they I think, hit big numbers? Do they really hit that big numbers? Because sometimes I doubt these things. So yeah, that's a different debate. That's a totally different debate. that Anyway, is something we should yeah, talk. let's Some talk. point that would be a separate show, by the That'll way. be a separate show. We can talk numbers when more films release. We've got Bilal Ashraf and Maya Ali's Khan Tumhara releasing Hmm. in 2026. We've got Nilofer. We've got I think one more film is coming on. There's another film, right? Yeah, Am I forgetting something? There's Nilofer and Khan Ma- and Khan, right? And I'm not Myra is forgetting. doing another film. Yeah, that's coming, but I mean, it's not on the floors. But I think these, Hmm. sure. And there's Hmm. always some kind of a little production. No, And I think I'm my, forgetting something. But yeah, there are films coming. Khan Tumhara looks good from what I know. It's kind of like ओ नहीं, it's an फरहान action. सईद की एक आ रही है। Love the song. या Love the song आ रही है. प्यार सॉन्ग या Love रब्बी the सॉन्ग। song. Love the song. अच्छा। वो आ रही है। हाँ, एक तो और भी है मुझे लग रहा है। I know I'll be corrected somewhere in the comments. ठीक है तो guys, we look forward to the films that are coming and we hope that Bilal Ashraf and Maya Ali make a stunning debut as a couple on the big screen, and I think that Pakistan needs action films, so this looks like a very thoroughbred And action. I think this will suit Bilal Ashraf. I from the beginning didn't really see him as this kind of, he's like this big bodybuilder more at times. I think as an action hero, he's gonna do well. So I really like Bilal. I think that he's got something, and I think it has a lot to do with who he is as a person. He's a gentle, kind person, and that kind of shines through his personality. I want to talk about Jama Taksim, Sadaf. Jama Taksim जो है वो बहुत ज्यादा लंबी lengthy डिस्कशन। discussion. हाँ, लंबी डिस्कशन। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ड्रामे हैं क्योंकि हमारे पास शर पसंद है, बिरयानी है, पमाल है, केस नंबर 9, मासूम, दिल ढूंढता है, जिन की शादी एंड जिन मेरी जिंदगी है टू टू के टीजर्स भी हैं कुछ, तो हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे सबको लपेटने की। शर पसंद के ऊपर बात कर लेते हैं, सॉरी जमा तकसीम के ऊपर बात करते हैं, फिर शर पसंद पे बात करेंगे, बिरयानी पे आएंगे। जमा तकसीम पे क्या टेक रहा सदफ आपका? मुझे लगता है कि जमा तकसीम है वो थोड़ा सा फिलर एपिसोड थी, लेकिन फिर भी मुझे कुछ दो तीन चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी एंड आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू द अपकमिंग एपिसोड बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग व्हेन बोथ इन लॉज आर इन द सेम हाउस। दैट इज This गोइंग टू बी is, फन। this is the writing, right? And I think Sarwat bin Nazir is like one of the most fabulous writers. This is what I'm so happy जब घरेलू issues हमारी lady writers को sometimes put down किया जाता है. If you हम्म। now compare her story, it's a very simple one, and हम्म। maybe ये बार बार बन चुकी है कि ओ हम्म। शादी जिंदगी, joint family system, and yet people are going crazy. अब देखो
ड्रामा और फिल्म में फर्क क्या होता है. एंड आई थिंक समटाइम्स खलील साहब ऑल्सो forgets this. And some of our writers that do things on a grand scale, they go for first 6 7 episodes you got one perspective. Now with हम्म drama series, because they take their time to unfold characters, they take their time to unfold situations. आपको ना सेवर सेवर का लफ्ज है ना, जैसे आप जुबान पे रिड़कते हैं ना लस्सी को या समथिंग लाइक दैट, तो स्टोरी को आप फ्लेवर्स उसके चेक करते हो, राइट. हम्म दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ. वी सी द फ्लिप साइड कि हाँ, जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम्स थे उन लोगों के, और लावा की तरह वो फटके सारे. एंड हम्म द टच पेपर वो होती है लैला, लैला हम्म और कैट्स का सिचुएशन. एंड बट नाउ यू सी कि यहाँ चोरी हो गई है उधर, बिकॉज दे आर नॉट यूज टू लिविंग ऑन देयर ओन. हम्म बिजनेस तो चल गई है. नाउ जो वो जो बड़े भैया थे उनको अब्बा जी ने कंट्रोल में रखा हुआ है. उनकी हम्म पुरानी गलत आदतें वापस आ गई हैं. ही इज गोइंग टू स्टेज ड्रामाज, ही इज नॉट कमिंग होम एट नाइट. तो वो मुझे अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है. पहले याद है हम लोग लड़ते थे, ये निगत का रोब क्या है इन पे. वो हम्म निगत को इसलिए लाड करते थे कहीं हमारे जो बिगड़े हुए बच्चा है उसको छोड़ ही ना दे. नाउ आई कैन अंडरस्टैंड, राइट. क्योंकि अमीर घर की बेटी है तो शी माइट से आई एम नॉट गोना स्टे विद दिस गाय हु इज ऑन ड्रग्स एंड Very good रात point. को नहीं Very, आता. very, very, very well picked up. Yes, absolutely, because that answers a lot of stuff. I think that हम्म, you've picked up on everything very well, and I feel like Dama Taksim, the reason why it's hitting so many people, and like my podcast with Mavra went so well, and a lot of people connected with whatever she said. So I have to give props to Mavra for being so sensible in translating that हम्म, message of Sarvat, and casting her was such a coup by Ali Hassan, because when you डेफिनेटली. have somebody like Mavra saying things like Zishan Sidra ko harass kar raha hai, there is a believability to it. राइट. There is an earnestness to it when she says it. हम्म, तो मुझे लगता है कि मावरा जो है, और जो तलहा जैसे कैरेक्टर का भी, जैसे जितना अनलाइकेबल कैस मेरे लिए हो है, वो हो सकता है, वो है. तो सीरियस कैस इज अनलाइकेबल? वेरी अनलाइकेबल टू नॉट मी. एट ऑल. नो, नॉट मेरे एट लिए ऑल. मेरे लिए ही इज ऑलवेज स्केटिंग ऑन थिन आइस फॉर मी. देयर मोमेंट्स अच्छा, व्हेन आई. अनलाइकेबल तब होता अगर वो लेके ना जाता उससे. you have to realize, I think we as women, we tend to think about what someone has said and not what their actual actions are. नहीं, He's मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं देर आर मोमेंट्स जहाँ मैं उसको पसंद भी करती हूँ, मुझे वो अच्छा भी लगता है. जैसे अभी एक आगे वाली एपिसोड में वो आके कहेगा कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के यहाँ रहने से कोई इतराज नहीं है, और हम्म, मैं तुम्हारे पेरेंट्स की बहुत इज्जत करता हूँ, वो सब कुछ है. एंड you know what I love about Jama Taqsim is this. See, when we look at heroes, we divide them into black and white. Why did we हम्म, love Mustafa from Kabhi मैं कभी तुम? वो चीखता भी है ना, कैसे वो उसको कहता है शर्जीना को, सर पे चढ़ जाती हो तुम, कि ये इतने इस घटिया घर में रह लोगी. उसके डीमंस हैं. हमें इसलिए पसंद था ना मुस्तफा, वो रियल हम्म. था. और रियल, हम लोगों को रियल लोगों से मोहब्बत होती है ना, टीवी के फिल्मों के हीरो से थोड़ी होती है. और जो रियल लड़के होते हैं, जो रियल हमारे पाकिस्तानी देसी मर्द होते हैं, वो ये भी कहते हैं वो माइग्रेन पहले नहीं हुआ अब हो जाएगा, इस तरह की बातें भी करते हैं वो. Actually, that was a pretty good dialogue. I That was thought it was. very good dialogue. And तलहा, I want to again appreciate था. मैं मावरा को अप्रिशिएट करती हूँ, उतना तलहा को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज तलहा जो है ना, वही इसीलिए मैं कहती हूँ कि मुझे जितना अनलाइकेबल वो था, इसलिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि तलहा उसको प्ले ऐसे कर रहा है कि एक रियल लड़का ऐसा ही होता है. ही हैज गुड डेज, ही हैज बैड डेज, ही हैज And बैड he मूड्स. has deep emotions. डीप He's got इमोशंस his इन own. अनलर्निंग अ लॉट ऑफ Yeah. स्टफ ना. सदफ किस किस्म के खानदान से आए, तो वो अनलर्न कितना करते करते. और But जैसे मुझे याद है सदफ, मैंने और आपने फरहत इश्तियाक को भी कहा था कि हाँ. हम लोग बहुत कुछ कंपैशन हमारे लिए हमारे अंदर आता है मुस्तफा को देख के. मुझे लगता है कैश को देख के, इवन दो आई हैव वेरी लिटिल लाइकिंग फॉर हिम, मुझे उसको देख के थोड़ा थोड़ा कंपैशन आता है, क्योंकि मैं उस टेपेस्ट्री को देखती हूँ जहां वो क्रिएट हुआ जिससे था, आया है, जहां से राइट. वो आया है. अगर आप वो लैंडस्केप देखो तो आप रियलाइज करो कि ओ माय गॉड. मतलब वो सीन जिसमें वो जाती है बेचारी माँ बाप को बुलाने के लिए कि आप लोग प्लीज मेरे साथ चलें, हम लोग की गलती इतनी बड़ी थोड़ी है कि आप जो है वो नहीं माने हमारी बात, चले यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करता. भाई कितना फजूल आदमी है इसका बाप. उस हम्म. बाप के अंडर रह के उसने जाहिर है बहुत सारी फजूल चीजें सीखी होंगी, लेकिन वो लैला की मोहब्बत में और एक मॉडर्न मर्द होने के हिसाब से वो चीजें अनलर्न कर रहा है.
तो मैं Okay. उसको पॉइंट्स देती हूँ इस चीज के। I will play devil's advocate because Achan, this is a lesson for our listeners. Okay, you can disagree and still be friends. Yeah, of course. Apparently, And I think it having makes for good different discussion. opinions is allowed, No, right? and I think if you are respectful and if you're not accusing somebody, सदफ आपने पैसे ले लिए इसलिए आप मुझसे डिसएग्री कर रही हैं। अगर आप नहीं, यही, काश मुझे कोई दे दे, वही मैं कह रही right? हूँ ना, हमें भी कोई पैसे दे दे डिसएग्री करने के लिए, अगर आपको कोई इस तरह की एक्यूजेशंस और बदतमीजियां नहीं कर रहा, आपसे रूडली बात नहीं कर रहा, तो आप बहुत आराम से मजे से डिस्कशंस करें। Most. That is the beauty of it. Jesus, so what were you saying? What are you Okay, playing I devil that was way? saying, and It's this for. is why I love this घरेलू drama. It is so three-dimensional and nuanced हम्म, कि देखो हम लोग कहते हैं कैस्ट बहुत अच्छा है, in my हम्म, नजर, right? He is fighting his natural feelings कि oh my God, ये this was not how I was brought up, but somewhere inside him देखो जो आपके husband या किसी भी बंदे में अच्छाइयाँ होती हैं वो पेरेंट्स की तरफ आई होती हैं, हम्म, right? I right now you're seeing this curmudgeonly couple, लेकिन देखो उसी कपल ने अपने बेटे को गलत निगत का जो मियाँ है, दे हम्म। न्यू इन द रॉन्ग, दे कंट्रोल्ड हिम, और निगत का घर बसाया हुआ है, और इवन उसको दो सब नाम भी कर दिया उसके, नाम भी हम्म, कर दिया उसके। yeah, और उसके नाम कर दिया। एंड देन यू लुक एट द यंगर सन, वो ही फ्रीली एडमिट्स कि मैं पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं था, मैं हम्म, निकम्मा था, मैं एटसेट्रा। उन्होंने ये नहीं कहा गेट आउट एंड व्हाटएवर, उसकी हम्म, भी शादी की, उसकी भी अरेंजमेंट्स की, ही वाज अ ट्रस्टेड मेंबर ऑफ द बिजनेस, मे बी उसको हम्म, पैसे, एंड बाय द वे दे डिडंट जस्ट से कि अच्छा तुम ये हमारा बेटा, इसको इक्वल पैसे दो, नो, ही डिडंट डू द इन्वेस्टमेंट, सो उसका गुजारा बस चल रहा था, हम्म, राइट? हम्म, लायन शेयर बड़े बेटे को मिलता था बिकॉज ही वर्कड हार्ड, और उसकी सारी इन्वेस्टमेंट थी, जहाँ हम्म। उनकी सही आते हैं एंड दे आल्सो आप एक्सेप्ट। डेविल्स एडवोकेट कैसे प्ले कर रही हैं? आप तो सही बात कर रही हैं, आई एग्री विद यू। Oh, okay then, हम्म। right, and there we go, and this is why नहीं, we're friends. because okay, yeah, so I get why you're doing the devil's advocate thing, because I'm kind of saying कि parents were terrible. I think you're absolutely right that, and I now that I see it from that perspective, I also believe that this is the power of our stories, this is the power of a good drama, कि वो आपको मोहब्बत और रिश्तों की जो पेचीदगियां होती हैं उनको बहुत Hmm. अच्छे से सिखाता है। जैसे अब इस ड्रामे में जो आप बात कह रही है ना, Yeah, na? I love that Urdu word. the It's so lovely. पेचीदगियां, हाँ, the complications, the complexities, the nuances, and I love the word पेचीदगियां because it encompasses everything. तो मुझे लगता है कि जैसे ये ड्रामा एक अच्छा ड्रामा, चाहे वो ये हो चाहे वो कभी मैं कभी तुम हो, मुझे उसके जो नुआंस में जो हम जैसे आप इस वक्त बात कर रही हैं, यू रीडिंग बिटवीन द लाइंस, एंड आई थिंक दैट्स सो इम्पोर्टेंट। आई विश मोर पीपल डिड दैट। Making us read between the Yeah, yeah, lines. yeah, yeah, yeah. I That too. hate, this is why I hate these kind of, I no disrespect to कौन सा था वो जो पत्तों का बन, जर्द पत्तों का बन, पत्तों। and like a lot of people loved it. I stopped watching because it was like अच्छा, it was so pedantic इट and वाज maybe इट वाज इट वाज आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे ये, yeah. दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे ये। हाँ, इट वाज वेरी And it could पेडांटिक। also be that because I am a woman and we're housewives as well as, we have degrees or whatever, right? I'm educated as housewives being a, and we can see Lala's perspective, but it got to us a lot more than Zat Patongaban, which maybe have been for a different audience. But look, let us compare, before we finish off, let us compare Lala to this girl that she's got next door. I notice how Lala is noticing this is not what I want to become. There's nothing wrong Yeah, with that's that. why she goes there, that's why she goes to the that amma that wo. I have to commend that girl as well because she could have come off as a shrew, लेकिन वो light play कर रही है, वो जो normally You have these to kind of praise fight, Ali yeah, Hassan for this. I think mm, Ali Hassan is yeah, because ये ब्रीफ डायरेक्टर देता है, ये एक्टर बहुत कुछ लेता है जा रहा है उसके, लेकिन ब्रीफ देता डायरेक्टर है कि दिस इज द टोन वेयर आई वांट right. टू सेट द सीन। आई थिंक दैट अली हसन का एक और जीनियस भी इस पूरे ड्रामे में ये है कि ओवरऑल पूरा ड्रामा, बड़ी सिचुएशन हो छोटी सिचुएशन हो, देर इज नो ओवर ड्रामेटाइजेशन, ओवर यूज ऑफ म्यूजिक, ओवर यूज ऑफ Hmm. इमोशनल शॉट्स। देर इज No ओनली, melodrama, na? if you notice, the only one time where he uses massive melodrama, and that is why it was so impactful, was when Hmm. Qais finds out about Zishan. That By the way, Zishan Bechara, he is really suffering now. And I'm once again, thank you, Sarwat Nazir.
एक्सक्यूज मी, थैंक यू सरवत नज़ीर, बिकॉज यू पॉइंटेड आउट कि लड़कों का भी कोई ख्याल रखे। अब भी वो दोनों माँ बाप ना अपनी दुनिया में गुम है, वो औरत निगहत अपनी सियासतों में। So obtuse, that woman is so obtuse, and props to लेकिन Madiha फिर Rizvi. सिर्फ मैं what I can get। Madiha Rizvi should get like proper awards for this portrayal. Oh, what impact? What And impact? children, Ilahi Baksh, Bichara, I mean, like, that child has, pata nahi, he's gone through hell on earth as well. You I still know think we he's a can say, bichara? right, no, yeah, because वो देखो ना, he has not been corrected, उसकी तरबियत अच्छी नहीं है। Adult होता तो I would be thinking completely different, right? But I see that as a child, this is what his mother has told him straight. Look at what the grandparents are saying. वो अब भी कुछ, have you noticed grandparents की जुबान पे उसका crime आता ही नहीं है। हाँ, आंख ओझल पहाड़ ओझल, कुछ है ही नहीं हाँ, खत्म। इज क्रिमिनल एक्टिविटी, लेकिन जो लैला ने किया है, कैस को ले जाके और मेरा घर टूट गया, वो तो बहुत बड़ा गुनाह है। अरे ग्रेटफुल। बात, भाई या हेलो, मैं एक्चुअली शरपसंद पे बाद में आएंगे, जम्मा तकसीम हाँ, को यहाँ कंक्लूड करते हैं और सदा हम पामाल पे जाते हैं। पामाल पे मैं इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि ये जो आपने बात की ना कि लैला का कसूर इतना बड़ा था, भाई मैंने एक्चुअल फेसबुक पोस्ट पढ़ी है, मैंने अच्छा। एक्चुअल ट्वीट्स देखी हैं, मैंने वीडियोस देखी हैं, जहाँ पे एक आध वीडियो में मैंने कमेंट भी किया है, जहाँ पे लोगों ने कहा है कि लैला जो है जमा तकसीम की, इसको तो हम्म। मियाँ देखो, मियाँ ने अपना घर छोड़ दिया, मियाँ ने अलग घर ले दिया, ये हो गया वो गया, लेकिन लैला साहब बस एक घर नहीं साफ कर सकती थी, है? अच्छा, पामाल के ऊपर आ जाते हैं। पामाल में सबा कमर जो है वो बगैर बताए ग्रोसरी लेने चली जाती है, उनका कैरेक्टर जो भी उनका नाम है, जारा नाम है, क्या नाम है, तो वो चली जाती हैं और उनके वो जो मियाँ घर आते हैं, उसके बाद वो उनको बहुत चीखते हैं चिल्लाते हैं, तो वो रोना शुरू हो जाती हैं। और फिर इस पे लोगों ने कहा कि जी इसमें रोने वाली क्या बात है, आपने गलती की थी, वो आके अगर आप पे थोड़ा गुस्सा कर गया तो क्या हो गया। You ओ know, माय they're गॉड। classic narcissist and codependent. What is that relationship? हम्म। ये लड़की भी जो है ना, she is kind of this, हाँ, and मैं आप मुझसे ऐसे बात करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, I हम्म। mean, she's so annoying as a character. क्या, क्योंकि I think 12-year-olds these days are more cynical. अब this मेरी is bad casting by the way, and I love Sabaa Kamar. I think terrible. Sabaa Kamar is phenomenal. But देखो, and I please want to say this to drama makers and actresses, देखें एज अगर 18 साल की कहानी लिख रही है, आप मना कर दें, आप हम्म। मना कर दें, आप इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, मैं विश हयात डायन, और अगर मायरा खान आगे जाके कोई 15 साल की लड़की प्ले करेंगी, मैं उनसे भी यही शिकायत करूंगी, भाई मत करो। मुझे तो सजल भी सही नहीं लग रही थी मंटो के लिए, मुझे तो हम्म। लग रहा था, पता है सजल की जगह किसको होना चाहिए था, आयना आसिफ को। खैर, Okay, that would have been terrible, but yeah, नहीं I जा रहे, think हम मंटो पे नहीं जा रहे, वी आर नॉट स्टेपिंग इनटू please दैट। वो ना दैट सुन, मेरे दिल से काफी हम सफर हो चुके हैं हाँ, अच्छा, दोबारा। coming back to Pamal, I think that this is bad casting. This is why the constant whining and crying just seems ridiculous. Because सबा कमर, एक तो सबा जब वो हम्म। बोलती है, जब उसका जो उसका स्टैचर है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, इट इज नॉट फिटिंग इनटू दैट कैरेक्टर एट ऑल। इवन दो सबा जब रोती है तो दिल दुखता है, उस अच्छा रोती है वो, लेकिन अच्छे रोने का मतलब ये अच्छा, नहीं है। मेरा नहीं दिल दुखता। आपका नहीं दुखता? नहीं, मेरा दिल दुखता है, मुझे अफसोस होता मेरा है दिल देख के। करता, आई वांट टू शेक हर। नहीं नहीं, मेरा होता है, लेकिन मुझे ये जरूर होता है कि क्यों बहन, क्यों, क्यों। No, because she is basically a very damaged individual. Okay, that was a joke. I don't really want to shake her, but she's a very damaged individual. Mehrumi ki zindagi guzari, and she lives in this fantasy. And well, when we come to biryani, you'll see that हम्म। is also Nissa's problem. She हम्म। doesn't have a father. Sari umar she's seen her mother, lekin her mamani and I see, this is the lovely thing about the writing in Pamal. हम्म। If you look at the skeleton of the script, हम्म। उसकी mother is not negative. She asks her, बिल्कुल अब बाबा की तरह थे, and वो बाबा कैसे थे? And she goes, I can't remember. 2 साल शादी रही थी. I can't remember. हम्म। And then when she later on, when her mamani is annoyed at the rishta, her हम्म। mother doesn't put up negative stereotypes and say, तुम्हारी mamani तो ऐसी है, तुमसे जलती है, तुम्हारी, that kind of nonsense। वो कहती है, वो प्यार से तुम्हें सारी उम्र रखा है ना उसने, right? हम्म। You are the हम्म। one who's breaking their hearts, right? हम्म। You are हम्म। the one who's hurting them. They offered you the honor of their son, हम्म। marrying their son,
right? What I didn't understand was that flirty behavior of Haris Waheed's character. That was completely out of line. And this is And why that and that man tantrum also. yeah. That man And that, tantrum also. and Grow Raza up, bro. Raza is I think that we have this stereotype. I'm glad that they're breaking that stereotype. Possessiveness and all of this kind of stuff is really romantic, Hmm. like it's not. Okay. Reasonable people do not behave like that. Thank But you. then she's always looking for somewhere to belong. वो ठीक है लेकिन ना मुझे ना I have an allergy to भोली लड़कियां. I feel that you can And be खरा बंदा. naive, but And you and can be, and खरा yes, बंदा also. ये हम्म. बदतमीज खरे बंदे. बदतमीज खरे बंदे, हाँ. I really, there is no instance of a खरा बंदा actually doing any good anywhere, na? हम्म. So, वो टेलर स्विफ्ट की लाइन है ना, सो कैजुअली क्रूल इन द नेम ऑफ बीइंग ऑनेस्ट. आई थिंक दैट्स व्हाट yeah. Oh, पीपल what a डू. great line. व्हाट अ ग्रेट लाइन. आई मीन Hey, देयर. सुनील साहब आपको टेलर स्विफ्ट बीट कर गई हैं. That Oh, is, please, please, Sadaf, do not take her name in the same sentence. Please, no. I'm a like ये a तो लेने दें. 50 हूं मैं भाई. नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चलेगा सदफ. नहीं 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 नहीं, कट्टी हो जाएगी दोस्ती, लड़ाई हो जाएगी. ऐसे तो नहीं कर सकते हम. मैं नहीं देखें. उस्मान मुख्तार का जो कैरेक्टर है, मुझे बहुत अच्छा लगा पामाल में ये बात कि I उन्होंने think he is actually the best thing about this, by the way. एग्जैक्टली और He's मुझे लगता है also, कि एक Hmm, पॉलिश खूबसूरत लड़के को लेना और एक अच्छा वेल एजुकेटेड अच्छे कपड़े पहनने वाला, स्टाइल से hmm, बात करने वाला, थोड़ा सा लाइक बर्गर ब्रो भी है वो. तो hmm. लेकिन उस ऐसे बंदे को ये दिखाना कि एक सबा कमर की जगह मोमिना इकबाल को ले लेते मेरे ख्याल से. तो वो एक Yeah. ऐसी. Oh my That gosh. would have been Great amazing. idea. That would Yes. have been amazing because she has that whole doe-eyed, I don't know what's going on in the world वाला vibe going on. But And मैं तो सबा. करूँ. You हाँ, know मैं तो that करूंगी. मैं लाडला तो बाहर सा चली एक, गई. मैं तो भूल yeah. गई, मुझे पता नहीं था. आपको अच्छा नहीं लग रहा? ओ सॉरी. तो ये जो है ना, उस्मान मुख्तार के साथ वो बड़ी अच्छी लगती. खैर एनीवे, सबा का जो एक तो वो पूरा फिट नहीं हो रही है उस रोल के अंदर. मगर मैं ये जो बात आपने पॉजिटिव, लेट्स लेट्स बी फेयर. पामाल की Hmm. बहुत अच्छी बात यह है कि पामाल ये चीज बताता है कि ये जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ पोजेसिवनेस एंड एंगर है, ये अच्छी चीज नहीं है. हमने एंग्री हीरो को भी बहुत ग्लोरीफाई किया हुआ है अनफॉर्चुनेटली. यूं हाथ पकड़ के कोई तुम्हें देखे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, डू 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 डिंग डू 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 डिंग एंड पुचुंग. उसके बाद वो किसी को पंच मार देगा गुस्से में आके. दिस इज नॉट कूल. द इम्पैक्ट, द रियल लाइफ इम्पैक्ट ऑफ अ हीरो लाइक दैट, not a hero, male lead like that, is this, is pamal. You get pummeled, you get pummeled when you're living with someone like that. In real life, he's a nightmare. That's a new adjective, right? Yeah. Yeah, Pamal. And then on the negative and the criticism I have for Pamal is that, again, like I said, bad casting. इससे पहले के सबा कमर के फैंस मेरे पास हैं भाई. आई लव सबा कमर. आई थिंक सबा कमर इज hilarious That's and I not want. going to save you. Oh, That's that's not not. going to save me, I know. And also I want to see सबा कमर do comedy. Please अब comedy कर लो. High time. अच्छा. और Because we got two dramas in which Sabah Kamar is weeping her eyes out. And उफ. you see, Myra's and other actresses of their stature, because they're similar stature, they try and make sure that that doesn't happen, right? You look at क्या उसका नाम है, सनम सईद भी तो उन्हीं के लेवल की हैं. तो बट सनम वो सईद को ना दोनों लाएं ने, क्योंकि सनम सईद ने जो भंड मारा है मंटो मिस मारिया बन के ना, बस वो तो छोड़ ही दें. खैर. तो I think played it well. I Okay, think she did the I best think she could, but like her character is so cringe. It's so cringe. Like वो आके बता रहा है मैं तो जाऊंगा उसकी मेहंदी में. काला सूट और वो. क्या कर रही हो बहन, क्या कर रही हो? यू बेटर देन दिस. क्यों साइन किया ये? क्या हो गया था जो टेम्पररी? राइटर ने लाइंस लिखे हैं वो तो पढ़ने पड़ेंगे ना. पढ़ के लेकिन रियलाइज नहीं हुआ ये कि मुझे ये नहीं लोग करना चाहिए. प्ले करने से पहले पढ़ लिया करें ना. दैट यू डोंट नीड टू बी पार्ट ऑफ सच अ प्रोजेक्ट एनीवे, दैट नो फिर पहुंच वन. गए सर हम मंटो के ऊपर. तो अच्छा. तो मुझे बस लगता है कि पमाल के अंदर कहीं कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जो आप थोड़े से, इसमें डायरेक्शन थोड़ी सी कहीं ऑफ है. फॉर एग्जाम्पल, हम्म. आपको थोड़ा सा ये कहीं दिखा, और कहीं राइटिंग में भी कोई एक आध जगह कहीं खींचातानी है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे लगता है कि अगर आपको ये ऑब्सेशन दिखाना है ना, वो आता है और वो घर में आके उसको एकदम से बिरेट करना शुरू कर देता है. द गैप्स बिटवीन हिज गुड एंड बैड डेज इज टू ह्यूज. हम्म. टू ह्यूज. ऐसे नहीं होता. ऐसे नहीं होता. स्पीकिंग एज अ हम्म. साइकोलॉजिस्ट,
जो ये बिहेवियर्स होते हैं ना, पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स होते हैं, ये हर कुछ दिनों बाद ना आपको दिखते रहते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं वो सिचुएशंस थोड़ी सी और पेपर करनी चाहिए थी, बट आई अंडरस्टैंड व्हाई दे डिड इट बिकॉज़ दे वांटेड टू, देखो हनीमून पीरियड This आया। is this is how narcissists जो है ना they trap women. Or हम्म। and same with the other way because I'm an equal opportunity. You get narcissistic women and हम्म। they would trap men this way. इतने अच्छे हनीमून पीरियड होगा जिसमें he is giving you gifts, जिसमें she is making you things. Shall I do this for you? Let's do this. फिर एकदम discard phase होगा. फिर उसके हम्म। बाद वो जो अब you know all these terms. हाँ बट फिर मतलब उन्हें हाँ, नार्सिसिस्ट नहीं सही दिखाया, मैं यही तो आपको मैं तनकीद हम्म, कर रही हूँ कि ये कहीं ना गड़बड़ कर दी है उन्होंने। बात सही कर रहे हैं, पॉइंट हम्म, सही बना रहे हैं, लेकिन ठीक से नहीं बना रहे, कहीं कहीं ना झोल आ रहे हैं, इसीलिए मुझे साइकोलॉजिकली कंसिस्टेंट नहीं था। आई गो बैक टू जफा। जफा हम्म, के अंदर मोहिब मिर्जा का जो कैरेक्टर था, जो वायलेंस की तरफ जाता है, आपने अगर उसके बिहेवियर की स्टोरी लाइन देखी हो, वो हम्म, बहुत कंसिस्टेंट है अपने लैंग्वेज में, अपनी बिहेवियर में। वो भी करता है लव बॉम्बिंग। सारे हम्म, नार्सिसिस्ट या अब्यूजर्स लव बॉम्बिंग पे जाते हैं, क्योंकि इससे उनको अपना प्रेडिटर, अपना जो प्रे होता है, प्रेडिटर को उसको पकड़ने का तरीका होता है। सोसाइटी से हम्म, तो हमें मैसेजेस मिल ही रहे होते हैं बहैसियत औरत के, बेटा बेटा घर नहीं तोड़ना, बेटा बेटा जो मर्जी हो जाए बर्दाश्त करना। वो तो है, हम्म, वो एक एडिशनल प्रेशर होता है। लेकिन व्हेन इट्स जस्ट द टू ऑफ यू, you need to see that person in a slightly positive light to continue the conversation, to right. continue the day as it is. And for that, these men like Jaffa वाला जो मुहिब है, और ये उस्मान मुख्तार and Pamal, men like them create an aura of love and affection, and Which he has. I which he mean, look, has. I know, but if you look at that dining room scene, वो कहती है ना कि ये आपको मना कर सकती है नहीं कि ये मेरे अच्छे लिए करेगी and it's like equal opportunity. ये हम्म। कितना मुझे प्यार करता है, ये हाँ हाँ खुद हाँ हाँ बड़ा हाँ। हो जाएगा तो उसे और ये जो मैनिपुलेशंस होती है ना, ये थोड़ी फ्यू इसमें दिखाएंगे, बहुत फ्यू एंड फार बिटवीन। ऐसे नहीं होता। ये थोड़ी और क्लोज अपार्ट, और थोड़ी और मल्टीपल, थोड़ी सी आपको इतना आपने टाइम दिखा दिया कि वो घर भी शिफ्ट कर लिया। उनका हनीमून फेज इतना इतना लंबा हनीमून फेज नहीं चलता, इसलिए मुझे थोड़ा सा ट्रबल हो रहा है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक फॉर एनीवन एल्स वाचिंग, they if they are relating to this, I think this is a great moment for teaching women how to spot अच्छा, जो मैं वो बता रही थी टू स्पॉट नार्सिसिस्ट एंड अब्यूजर्स, मैं आपको वो जो पोस्ट बता रही थी ना, सबसे मैंने फेसबुक पे पढ़ी है, लिटरली हम्म। मैंने एक मिनट के लिए कहा, मैंने कहा ये सटायर है, प्लीज टेल मी ये नहीं, सटायर है। क्योंकि उसमें पता है क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था, लड़का तो उसको घर भी लेके दे रहा है, बेहतरीन डिनर सेट, बेहतरीन घुमाना फिराना, कपड़े लत्ते। अगर वो कॉलेज, अगर वो घर पे फोन छोड़ के चली गई और मियाँ ने आके हल्का सा डांट दिया, इसमें इतना फुट फुट के रोने की क्या बात है? मतलब औरतें अब रोए भी नहीं। वो बेचारी ने कुछ किया ही नहीं उस ड्रामे में इसके वो अलावा। ना I'll have to say this is one of the reasons that I'm getting a little fed up with हम्म। that. But I think that's how the character is written. That's not Sabaa Kamar. That's how the character is written. कि एक छोटी सी उम्र की बच्ची है. Your point at the beginning was right. The reason we don't believe all these things is because Sabaa Kamar is much more mature than हम्म। that. So, हम्म। but if we had say cast someone like Sajal You're or a saying young, if we see it on paper, it makes yeah, sense. That's what you're saying. yeah, that's what I'm Okay. saying. See, I always notice this. Sometimes you see the skeleton of the script through the words. Through the जैसे birds. ये अभी हो सकता था, Hmm. right? वो Hmm. हर 5 मिनट, which is very emotional, bookish kind of शार्लोट ब्रॉन्टे टाइप की वो जो एक कैरेक्टर नहीं होती, Mm-hmm. ये Head हो in the गया, clouds. Head हो in the गया, clouds. हाँ। और हर चीज एक्सट्रीम पे, और वो अफसानवी दुनिया में गुम, राइट? हाँ, मेरे 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 बारे में आज तक किसी ने इस तरह बात नहीं की कि कोई मेरा भी मुहाफिज हो सकता है। ए Yeah, गर्ल। which is ridiculous because you grew up, she may have been क्या कहते हैं, she didn't have a father, but she या। had a fairly pleasant life. And if you think about Pakistan and the way other people are living, you had a fairly pleasant life. हम्म। Achha, this is another thing that I find missing in a lot of our dramas, and it's a plea to writers, moderation, right? हम्म। When they write a heroine के एक चीज की जो महरूमी है उसको आसमान पे चढ़ा देंगे. She didn't have vision. I realize this, but she had a lot of other things. yeah, ये and her मैं mother was कॉल really nice. Her mother was really, and I think that थोड़ा सा आगे वो है जाके, मामू और ममानी were या incredibly वेरी loved. नाइस, या वेरी नाइस पीपल, वेरी नाइस पीपल। लेकिन पता है, वैसे एक बात बताऊं, वही मिसिंग है नुआंस इस ड्रामे में। वो नुआंस जो आ सकता था, डायरेक्टर ला सकता था, या कहीं से आ सकता था। पता है क्या होता है सदफ, मैंने ऐसी लड़कियां भी देखी हैं, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द राइटर वाज गोइंग फॉर,
यू वेरी राइट, व्हेन यू लुक एट द बेयर बोन्स ऑफ इट, इट लुक्स डिफरेंट। बहुत सारी लड़कियां मतलब जो बहुत प्यार में लाड में पली होती हैं, लेकिन उनकी लाइफ की कुछ महरूमियां होती हैं। तो वो अफेक्शनेट तो है उसकी फैमिली, लेकिन मैंने ऐसी लड़कियों को मैं जानती हूँ जिनकी लाइफ में बहुत प्रिविलेज था इस तरह का, कि बाप नहीं था या माँ नहीं थी लेकिन मोहब्बत थी। बाप नहीं था, माँ नहीं था, लेकिन अच्छे से पली, कोई ऐसा अल्लाह ना करे कोई जुल्म ज्यादती नहीं हुई उनके साथ। मगर पता है सिर्फ उनकी शख्सियात में ना कुछ खला रह जाता है, और वो खला खाला पूरी करने के खाला लिए वो को देख रही होती है हर तरफ। recognize, सॉरी आई वाज टॉकिंग ओवर यू, आप फिर नहीं से नहीं, आप कहें। बताइए, आई वांट टू लिसन टू व्हाट यू नो से। ओके, वेल दिस इज द थिंग राइट, किसकी जिंदगी में कोई खला नहीं है। आई हम्म। कुड के आई वाज नहीं, अवे मगर ये फ्रॉम। बात तो नहीं हो रही ना, मतलब मैं तो ये कह रही हूँ, मेरा मेरा अर्ज करना ये है कि देखें, खला जब होती है ना, कभी कभी कुछ लोगों की लाइफ में पैदा हो जाती है। आप एक वेल राउंडेड इंडिविजुअल हैं, तो आपने कहा नहीं, मेरी जिंदगी में जो खला था मैंने उसको हेल्दी तरीके से पुर किया। एक बात समझ लें। राइट, दिस हाँ, इज व्हाट आई लेकिन वो वांट नहीं है ना हेल्दी, हम मान पीपल। रहे हैं, मैं मान रही हूँ कि वो हेल्दी हेल्दी कैरेक्टर नहीं है वो। No, no, but this is what I want people when they give their, you see, the mother is a voice of reason, right? There's also हम्म। a voice of reason. And that, yeah, we have to give points to Zanjabil for this, right? डेफिनेटली डेफिनेटली। Mother gave her, she's like, why is ये रसोई का अड्डी उसका नाम है, अन्नी, which is अन्नी, हाँ अनस अन्नी। अनस होता है ना उसका नाम। हम्म। So she's going, अन्नी भी ऐसे कर रहा है, मेरी मम्मा नहीं ऐसे, कोई बात नहीं। And she's kind of like arrogant that I bagged the rich guy, right? And her mother says, you know what, all your life your mamani has put up with you in your house, हम्म। right? खुद जब जाती है किसी के घर, तो हम्म। एक सेकंड के लिए वो जो भाभी की डांट नहीं उससे बर्दाश्त हो रही होती, अच्छा, आपको right? लगता है कि ये जो नुआंस है, जो आप कैरेक्टर का नुआंस बता रही हैं, वो परफॉर्मेंस की वजह से मिसिंग है, वो डायरेक्टर की वजह से मिसिंग है, वो राइटिंग में कहीं मिसिंग है, वो No, कहाँ no, मिसिंग no. है? I think that the writer's doing this deliberately, but what they're missing is a voice of reason to explain this to us, हम्म। right? I'm picking up on it because I can see, देखो, she looked to me, maybe she didn't have a perfect life, she had a good life, right? Yeah, A and lot she's of kind of people like lame in so many moments, so you get that. खाने को है, कपड़े हैं, etc. I'm not saying actual problem is the husband. हम्म। It's not everybody else. It's not the हम्म। bar. हम्म। Everybody has problems. Yeah, a woman with like a healthy relationship with her father, like Lala and Cass, हम्म। unki bhi, but when they got married, they had problems. The problem is हम्म। the life partner, not the background. हम्म। But he overreacts and she behaves silly because she hasn't got the tools to be a healthy person. I think her mother is slightly to blame, but I can answer, but my actual beginning of my words was this: it's a plea to writers. Okay, when you write these characters, I'm not stopping you. In fact, it's very वेरी necessary. गुड, But हाँ। put some kind of voice of reason, voice of moderation that तो says, a bit of an explainer, हाँ हाँ right, हाँ हाँ। guidance. Because I think so many of us watch these dramas, and I would like people to have guidance. जैसे आप देखो ना, I'm going back to Sarwat Nazir, मुझे सब मारे, but it's so good the way that Laila sees that other girl, और वो बेवकूफ लड़की जो है, मेरी अम्मी कहती हैं, क्योंकि I see this all the time, right? That a girl is willing to compromise, get along, or whatever, and अम्मी जी के जो जिंदगी है ना, वो अम्मी जी इज अपनी लिविंग इन प्रोजेक्शन कर रही हैं अम्मी जी, अपनी प्रोजेक्शन कर रही हैं। अच्छा, एक और जुमला भी बड़ा अच्छा था, उसके बाद वी हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट राउंड। जमा जमा तकसीम में एक बहुत अच्छा जुमला था, एंड अगेन थैंक यू सरवत नजीर फॉर डूइंग दिस, कि अब्बा जी के घर होते ना तो हम महफूज होते, कितनी महफूज तो वहां भी नहीं थे। हाय। Oh yes, that was such a scene. Thank you. ओह, थैंक यू, थैंक यू, वरना ये। She that's the director as well. Look, देखो ना, डायरेक्टर ने एक सिचुएशन बिल्ड किया, and it was like, हाय क्यों छोड़ के गए हम अब्बा जी का घर, and then suddenly deflated it by making such a great point. So So that props is, to the actress, props to the director, props to the writer, props to Hum TV for such a good drama. Now we come excellent. to another very good drama, because जो points हमने ARY से माइनस कर लिए थे मंटो से, वो हमने वापस दे दिए शरपसंद में, मैंने तो दे दिए। I don't know about you, Sadaf. Are you watching शरपसंद? I have seen half of it. As I said, it was a busy Oh. week, but well, actually, maybe I saw more than half of it, so quite a bit. Okay, So so yeah, when you have time, if there is any time, that my recommendation is, okay, if you have time where you can watch one drama, watch Sharpasand, and I say this to you guys yeah. as well. So what I loved about recent episodes Hmm. of Sharpasand, हरीम का जो कैरेक्टर होता है, वो देखे ना, मुझे जमा तकसीम में जो चीज पसंद आ रही है वही मुझे Hmm. हरीम के कैरेक्टर में पसंद आ रही है। ये रियल लड़कियां हैं, ये रियल लोग हैं जिनसे हम रिलेट करते हैं, जिनको हम अंडरस्टैंड करते हैं, जिनसे ऐसी सिचु... नहीं है गुड गर्ल, अरे एम ए भाई, गुड अरे नहीं भाई, है।
और हम उन सिचुएशंस में हम भी रह चुके हैं, गाड़ी देर से आ रही है, हम पहुंचे नहीं, हम आए नहीं, मतलब so in this recent episode she has this little tiff with her husband where it becomes a discussion about gender, it becomes a decision, it becomes a discussion about, or a debate rather, about mob violence, mob justice. मतलब वो इस तरह की लॉजिक देता है कि भाई इतने सारे लोगों ने कहा है तो सच ही होगा, जो चीज बात सब कर रहे हैं जरूरी नहीं होती कि वो सच होती है। और दूसरी चीज ये कि एक औरत के ऊपर जब इल्जाम लगाए तो कितना आसान है औरत के ऊपर इल्जाम लगाना। वो जो लड़की है शाहजमीन, शाहजमीन नाम है उसका, आई थिंक हीरा जो प्ले कर रही है। Yeah. I really loved the fact that हरीम का कैरेक्टर is shown to stand up in front of the मोहल्ले वालियां। एंड नादिया अफगान की जो मैनिपुलेशन है ना, कि वो जो जाके लड़ना शुरू कर देती है, और फिर उसकी, आई डोंट नो इफ आई एम मिसिंग इट गाइस, मुझे कमेंट्स में बताइएगा इफ आई एम मिसिंग समथिंग। जो फरासत साहब हैं इनकी अम्मी बहुत अच्छी हैं, अजरा मंसूर प्ले कर रही हैं, वो लेजेंड। अजरा मंसूर उनकी अम्मी प्ले कर रही हैं, वो बहुत अच्छी आंटी हैं, बहुत अच्छी खातून उनको दिखाया है, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। लेकिन फरासत एक नंबर का कमीना है, चीटर, झूठा, मैनिपुलेटर। बीवी भी ऐसी है, बीवी थोड़ी बेवकूफ है लेकिन है वो भी मैनिपुलेटर। बीवी जो है ना, द फरासत साहब टाइप लोग एंड बीवी, व्हाट इज दिस, दिस अ स्पेसिफिक टर्म फॉर दिस, इजंट इट? जो एक नार्सिसिस्ट होता है जिसने एक पब्लिक इमेज बनाया होता है, हम्म। राइट? हम्म। देयर इज सम काइंड ऑफ टर्म फॉर इट, व्हाटएवर इट इज, बट इस टाइप के कपल्स आर लाइक टिंडरवुड, जैसे लकड़ी और आग, या बिकॉज शी इज मेरे फरासत साहब, हैव यू नोटिस्ड हाउ मच शी adores कैसे him? कर लेते हैं आप, कैसे कर लेते हैं ना, इतना बड़ा दिल कहाँ और से लाते मैंने हैं आप। एंड द वे शी गोज टू उस लड़की के घर, कि इसने किया होगा इतनी बदतमीजी से, आई मीन लाइक इट वाज अ शॉक दैट समवन But वुड I've गो दिस। seen people like this. I know people like this. And this is why I think Sharpasand is such brilliant writing. Again, I'm going to say it has Zanjabil written all over it. तो किसी दिन पता चलेगा कि संजबीर कोई आज से 10 साल बाद कहीं बैठ के इंटरव्यू दे रही होंगी, बोलेंगे वो असल में मैंने उसमें ये कहानी डाली थी। तो ये जो है ना, शरपसंद की एक और बहुत अच्छी बात ये है कि हरीम का कैरेक्टर जो है ना, वो अपनी बाउंड्रीज जब डिफाइन करता है तो कहानी में दिखाया जाता है कि देखो, जो हमारे यहाँ ड्रामों में क्या होता है, एंड व्हाई आई लाइक शरपसंद, हमारे ड्रामों में क्या होता है कि अगर लड़की ने कुछ ऐसी कोई स्टैंड ले लिया, तो या तो थोड़ी देर बाद आप उसको कवरिंग में दिखा देंगे, पोजीशन में दिखा देंगे कि अच्छा आई एम सॉरी, मैं आइंदा नहीं करूंगी, ओ माय गॉड ये मेरे साथ क्या हो गया। दोनों लड़कियां, शाहजमीन भी, हिरा भी, और हरीम भी, दोनों के कैरेक्टर्स के सामने ना, वो जो एक पूरा जो वेब ऑफ लाइज क्रिएट किया हुआ है फरासत ने, वो उनको पड़ता है, वो उसका नुकसान उठाती हैं, बट दे डोंट kind of become like puddles, and they don't become like a mess of poo, like oh my god, अब क्या करें, oh my god we'll compromise। नहीं, they're like भाई हम क्यों करें। वो उसको जाके कहती है कि तुम्हारे साथ ये होगा और आई विल स्टैंड माई ग्राउंड, आई विल ब्रेक ऑफ दिस एंगेजमेंट बट आई विल स्टैंड माई ग्राउंड। वो दूसरी लड़की कहती है आई विल फाइट विद माई हस्बैंड अबाउट दिस, आई विल स्पीक माई माइंड बट आई विल स्टैंड माई ग्राउंड। आई लव दैट बिकॉज आई थिंक के रियल वुमेन डू दिस। हमारे कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से क्रिएट होते हैं कि जब हम अपनी ग्राउंड स्टैंड करते हैं। लेकिन जो लड़की कॉम्प्रोमाइज करके बैठ जाती है वो दुखी बहुत होती है, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन वो तो कर नहीं, लिया ना बिकॉज उसने कॉम्प्रोमाइज। आप किसी को राजी नहीं कर सकते, आइदर वही समवन वही asks you तो भाई not, माइट एज right? वेल डू इट, माइट एज वेल स्टैंड योर ग्राउंड। सो आई लव शरपसंद, आई थिंक सच ब्यूटिफुल एक्टिंग बाय नोमान एजाज, मतलब भाई सारे अवार्ड दे दो इनको। And this isn't his usual style. Normally, I mean, just as I was watching a bit of Sharpasan, we had these clips coming in of Atish Ishq Dampukht. दम Remember that बहुत, Bilal Abbas and वो मतलब आई लड़की डोंट का, रिमेम्बर इट वेरी वेल बट आई रिमेम्बर दम yeah, बहुत, yeah. यस या। And that was such a, I mean, that's when A plus was like on its A game now. And I व्हाट wish they, हैपेंड टू इट। yeah, या I wish they would come back to it, right? But I mean, that was an amazing serial. We see Numan Ijaz as a very intense actor, uh, हम्म। kind of like controlling and powerful actor. And here वो इतने mild mannered बने हुए हैं, and it's wonderful. I'm so impressed. Very So, impressive. And mm, this is the Noman Jaz. If you guys haven't seen Ullu Barai Farokh Nahi, the range, the mm. versatility, And the sir, aura. the Let's do one of aura. those things, yeah, गोट Numan Ijaz. भाई, गोट हैं सलमान और ये नुमान एजाज। इनको अवार्ड दे दो, सलूट दे दो, क्या देना है दे दो बस। तो He's so good. अमेजिंग, Yeah. अमेजिंग। सदफ, नाउ वी वांट टू कम टू बिरयानी, एंड देन विल कम टू जिनकी शादी उनकी I शादी। want to play a violin, just gonna float away. I know लोग तंग पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे मेरा मुझे तो दिल बड़ी बड़ा। अच्छी ट्वीट दिखी है, मुझे किसी ने, पता नहीं कौन थी वो, जो भी था, बहन तुम सामने आ जाओ, भाई जो भी थे, कि बिरयानी इस जगह में खिचड़ी। या, नहीं, मेरे लिए नहीं खिचड़ी नहीं, बनी। अच्छा, नहीं,
Really? What do you It's like like, about and it? I tell you why. Hmm. It's because when you're in love with all the characterizations as I, Hmm. फिर Hmm. आपको ना ऐसे लगता है कि आपके, एंड दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ड्रामा राइटिंग, ऐसा Hmm. लगता है आप पुराने यार दोस्त मुंतों में कि आप बैठे हैं हाँ उन दोस्तों की और कहानी सुन रहे हैं और वो कुछ स्टूपिड चीजें बता रहे हैं लेकिन आप सुन रहे हैं, आपको मजा आ रहा है फिर भी। आई गेट इट। आई गेट इट। नो, हमें आई डोंट फील द सेम वे अबाउट बिरयानी। आई हेट अच्छा मीरान। पूरा क्या लग रहा है मुझे तरफ बताए। Miran is a protagonist I should root for. I don't, because he yelled at that kid who जो उसका ऑटिस्टिक। नहीं वो नहीं करना चाहिए था, हाँ। यार राइट ऑफ कर दिया मैंने। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती ऐसा कैरेक्टर जिसके दिल में ये एम्पैथी ना हो। क्योंकि देखे ना, मैं हीरो किसे कहती हूँ, या मैं एक रूट करने के लिए एक प्रोटैगनिस्ट जब आप बिल्ड करते हैं टेलीविजन के लिए, फिक्शनल टेलीविजन। देखिए, मैं किसी बुरे कैरेक्टर के लिए भी रूट कर सकती हूँ, अल्लाह करे इसको अकल आ जाए, लेकिन मैं हम्म। उसको उससे मोहब्बत नहीं कर सकती। ठीक है ना? जैसे बहुत सारे किरदार ऐसे होते हैं, यू फील सॉरी फॉर देम, यू आर इन्वेस्टेड, इमोशनली इन्वेस्टेड, यू फील सॉरी फॉर देम। फीलिंग सॉरी इज ऑल्सो इमोशनल इन्वेस्टमेंट। सो आई कैन, आई विश। इज दैट रियलिटी ऑफ लाइफ, देखें उसको पता है, वो लाड भी बहुत करता है, राइट, उस लड़के को, राइट, बट इवन आपकी सगी औलाद हो, आप तंग पढ़ के कह नहीं रहे हो सदा। अरे नहीं। हटो, क्या कर नहीं। रहे हैं ये नहीं यू सदा, डू। वो बहुत बुरा सीन था। आई नहीं एम नहीं, जस्ट आप करते हैं, नहीं नहीं आप करते हैं, मैं खुद भी करती हूँ कि भाई इंसान वैसे बात कर लेता है, क्या है, हट जाओ, एक साइड पे हो जाओ, इतना तो कर ही लेता है इंसान। लेकिन वो सीन इतना बुरा था। आई डोंट नो इफ खुशहाल ओवर डिड why इट। they put that scene in, आई and डोंट this नो। is my guess. I हम्म। am telling you कि they wanted to show कि Gul Meher's vulnerability, राइट, कि अगर इट ये एंडेड शान अप और इनकी फैमिली ना गुल मेहर के भाई को समेटे, वो कहाँ जाए, भाई, दे आर इट एंडेड अप शोइंग मी मीरान एज अ टेरेबल पर्सन। अच्छा, ओके। I mean, I think I have a more forgiving nature. I'm one of those people, when you get old and tired, you say, अच्छा चलो ये भी कर ले. No, as an autism parent, there are things I draw lines at, and I'm like, oh, boss, you cross You that found line. that a painful scene. Yeah. It isn't not just painful. It also shows me that, again, like, अब जैसे हम जिन की शादी पे भी मैं आऊंगी। जिन की Hmm. शादी, उनकी शादी में अली चौधरी का जो कैरेक्टर है वहाज का, वो भी कुछ क्वेश्चनेबल चॉइसेस लेता है। एक You होता है, love. हाँ, आई लव हिम। क्वेश्चनेबल चॉइसेस लेने का मतलब ये है कि कहीं एक लाइन होती है सदफ जो क्रॉस नहीं होती। वो कुछ लाइनें हर इंसान की अलग होती है, मुख्तलिफ हो सकता है, बहुत सारे लोगों को आपकी तरह फर्क ना पड़ता हो कि अच्छा उसने चीख दिया, गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं। मुझे फर्क पड़ता है। एज एन ऑटिज्म पेरेंट फर्क पड़ता है। मुझे नहीं ऐसा, अगर मैं गुलमहर की जगह होती, जो कि मैं नहीं होंगी कभी भी क्योंकि मैं इतनी साइको नहीं हूँ, तो गुलमहर की जगह कोई भी पेरेंट होता, कोई भी माँ होती, उसका दिल कट के रह जाता। मुझे तो लगता है गुलमहर रियली अंडर एक्टेड दैट सीन, सरवत रियली अंडर एक्टेड दैट सीन, बिकॉज She had to, didn't she? Because, नो, योर आईज शुड हैव बीन वाटरी। आपकी आंखें लाल तो होनी चाहिए थी सदफ, ये तो नहीं हो सकता। और चलें, आप ऑटिज्म छोड़ दें, आपके बच्चे को इस तरह कोई मतलब बदतमीजी कर दे, छोटा बच्चा है, बड़ा भी नहीं है, छोटा है, तो छोटे को बच्चे को इस तरह आप करेंगे सबके सामने ऐसे yeah, बात there's an डांटेंगे। automatic mother bear reaction, यार, isn't it? Say, यार how इतना dare तो you? होता है, इतना तो होता है Uh, उसके वो बस चुप है, सैड है, ठीक है, लेकिन yeah. उसकी आंखों में कोई ना कोई फ्लैश ऑफ पेन होना चाहिए था, जो नहीं। What about the young man who was playing the autistic character? I thought he was amazing. Oh, he's brilliant. That kid is Yeah. brilliant. हारून जो Hmm. प्ले कर रहा है। And I think overall drama जो है ना, वो जिस, again I do think that I love this drama because of its so many other points. But I Hmm. have written off the main lead, because the male lead, because I'm like, I really hope Nissa finds someone else. I don't care if he's happy with Rashid. I don't care, because कल को बॉस अगर तेरा कोई आपका ऑटिस्टिक बच्चा हुआ, तो क्या आप उसी तरह चीखोगे just because you're frustrated with something? Is that what Well, you're I gonna tell do? you what, mental जो challenges है ना, and I speak from my own experience Hmm. because I still remember this. I was trying to make breakfast and my mother who had complete Alzheimer's, तो वो ऐसे थे जैसे toddler हो, Hmm. बिल्कुल एक toddler, and she was doing some stuff and she मना नहीं हो रही थी. In Hmm. the end, मैं ऐसे करके ना, I walked away. I walked away in anger because I had to cook something and she fell over and we had to go to the emergency room. So I was guilty for a while. Then I realized these things happen and you have to be, it's very I'm difficult. gonna stop you. I'm gonna stop you. I'm gonna stop you. Sadaf, you Hmm. were the primary, one of the primary caregivers. The pressure you are under cannot be compared to the pressure Kushal's character was under. No, That's I one thing. wasn't one of the primary caregivers. I spent 6 months with her. You were Most still of her her. daughter. Sadaf, Yeah. it's different. It's different. It's not the same thing.
It's not the I'm same just going to say it's very hard when you have someone, I don't know with about challenges. I get with it. mental health challenges, I get it. कि we often ignore the amount of patience required. I just say कि भाई एक आध कभी कभार, if it was a regular thing, then he would be evil, right? Then I would consider that evil. But I understand was he shouldn't have done it, लेकिन कभी कभार गुस्सा चढ़ जाता है, नहीं, मुझे right? नहीं लगता। और वो जो जिस चीज पे भी उसका गुस्सा चढ़ा था, जहां देखें सदैव आप बहुत कुछ, जैसे आपने भी ये स्टोरी सुनाई, ऐसी स्टोरी मेरे पास भी है, 10 और लोगों के पास भी है, कि कोई चीज हो रही है, वो नहीं कर रही, यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग राइट एंड इट्स नॉट वर्किंग, एंड देन यू लूज योर हेड, बिकॉज आप कुछ सही करने की कोशिश कर रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो, यू वांट टू फिक्स इट एंड इट्स नॉट हैपनिंग। दिस इज नॉट द सेम थिंग एज कि आपका ब्रेकअप हो गया एंड यू आर टेकिंग इट आउट ऑन अ मेंटली चैलेंज्ड चाइल्ड। What does that Hmm. say about you? It's not the I same think thing. If you want to also, create a parallel, if you want to create a parallel, it would be you losing your head with your mom because you're stressed about something else, and it's that person isn't even doing anything to you. That person is not bothering you. They're just okay, I'm not angelic, लेकिन he at that age, right? बड़ी मारे खाएंगे हाँ, अभी भी, तो सोचे she आप। didn't know what she was doing, तो शी right? डजंट नो ना, मैं वही बात कह रही हूँ, उस बच्चे को भी क्या पता कि वो क्या कर रहा है, ही इज ऑटिस्टिक। ठीक है। और जिस लेवल का वो ऑटिस्टिक है, कि वो बहुत लिमिटेड उसकी कम्युनिकेशन है, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। सो उस बच्चे के ऊपर जाके चीखना, आपको कैसे आप गवारा कर सकते हो यार। देखिए, मैं Wasn't भी nice. मैं Yeah. बता रही हूँ, केयर गिवर्स का, प्राइमरी केयर गिवर्स का स्पेशली, थ्रेशोल्ड खत्म हो जाता है, और वो भी ठीक है। अगर मैं गुलमहर को देखती ना, टू शी इज लूजिंग इट, आई वुड हैव रिलेटेड This टू is हर। your point कि भाई कभी कभार तो मिलता है, and then he acted like this because he's And not the for what? person. And for, यार देखो, even and I would have agreed you with your point and I would have given him that pass. वो उसके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है, he's already upset with something, उस बच्चे ने कुछ नहीं किया, and then he just like पीछे हट Tell, गया। tell me this, right? Maybe हम्म। it's a little change, right? I really, really like that scene where he says, जो उसको तकलीफ हुई होगी ना आपको ऑमलेट बना के देने में, वो हम्म। आगे से नहीं आपने जाना है। And I thought, is that the ketchup moment? उसने केचप भी नहीं खाया। अच्छा, उसके ऑमलेट बनाने की तकलीफ है, सॉरी आई जस्ट हाँ। पुल्ड माय चेयर डाउन। उसके ऑमलेट बनाने की कितनी तकलीफ है, उस ऑटिस्टिक बच्चे पे चीखने की तुमको तकलीफ नहीं हुई। जाने दो यार, नहीं अच्छा लगता मुझे ये Yeah, कैरेक्टर। this is what I mean. That was kind of like a silly parallel. सिली पैरेलल, Right? हाँ। Yeah. And I was thinking, should I laugh or should I cry at this Yeah, I moment? found it very ridiculous also. I really like the Hmm. Mamu. I really like Mamu's dialogues. Hmm. अगर खलील साहब सुन रहे हैं तो प्लीज टेक नोट्स। Hmm. ARY वाली टीम सुन रही है तो टेक नोट्स के खलील साहब को देखना चाहिए कि जो मामू के डायलॉग्स है ना, जब वो सिचुएशन पे आते हैं, दे आर बेटर देन KRQ's डायलॉग्स, जस्ट बाय द वे। एंड Oh. बिरयानी की जो, मामू के डायलॉग्स नहीं है, वो जफर महराज के डायलॉग्स हैं। वही लेट्स गिव मतलब, हाँ, ऑफ क्रेडिट कोर्स ऑफ क्रेडिट। कोर्स ऑफ कोर्स। और मेरा, जैसे आपने एक दफा बात की थी ना कि व्हाई डजंट हुमायूं डू केस नंबर 9, व्हाई वोंट ही डू अ केस नंबर 9। आई थिंक दैट हुमायूं, अगर आप एज गैप की बात करते, बाय द वे पिछले हमारी वीडियो में भी फड्डे चल रहे थे, एज क्या है, एज क्या है, एज क्या है, एज क्या है, अभी तक नहीं ये मसला सॉल्व हुआ, ये मुअम्मा अभी तक हल नहीं हुआ है। तो अगर, By the way, guys, I messaged Badr Mahmood. I have not received a reply. So ओके, maybe, maybe right? we'll read a reply soon. व्हाट आई एम सेइंग इज के जो ये वाली रोल्स हैं, जो अगर ऐसे हमारे बड़े स्टार्स करते, या बड़े लोग, जो ज़ाहिर है रमशा और खुशहाल से और ऊपर के जो बड़े स्टार्स हैं वो करते, तो बिरयानी की भी वही रेटिंग्स आ रही होती, बल्कि मंटो से शायद बहुत बेहतर आ रही होती। मंटो तो जो खींच के ले आया, तो वही पॉपुलैरिटी की बेस पे खींच के ले आया। ड्रामा वाज अगेन, व्हाई आर वी बैक ऑन मंटो, माय गॉड, कांट वेट टू गेट दिस आउट ऑफ आवर सिस्टम। तो एनीवे, द बिरयानी, आई स्टिल लाइक बिरयानी। You started this conversation. It kind of caught fire in हम्म। my imagination. Imagine कि Humayun say, let's take this to where it's logical question. It's a wonderful idea. मैं हम्म। सोच रही हूँ यही बिरयानी में हुमायूं होते खुशहाल की जगह, just a different perspective, is an older man एज who गैप, was supposed to marry someone, यस, yes, and then we didn't ऑलरेडी have. है, या Yeah, Nita as a young girl, she could be a woman who is 29 or something, 30, या right? And या she's unmarried because she's in a career, वो teach कर रही है इसको हाँ, something, PhD something असिस्टेंट्स what होती is, हैं, MPhil yeah. PhD वाली लड़कियां होती हैं ऐसी एज, इन एजेस And में। you could have created this whole scenario in which he is stuck. उसका भी, it would have been amazing. बट I'm ये तो thinking हमको about it करना now. नहीं है, Yeah. हमको करना है स्टूडेंट आपको टीचर क्यों मेहनत रोमांस।
right? Yeah. लाडली पराठा खा ले, ऑमलेट बन गया है लाडली, हमको तो ये करना है, हमको तो पता नहीं अजीब औरतों को। Ami Saiba is a sarcastic. I just, oh God, Mehmal is the worst character. But we're The back whole again. drama is the whole drama is a train wreck. Sadaf, we have to talk about जिनकी शादी उनकी शादी before we sign off. And दिल ढूंढता है फिर वही, but जिनकी शादी उनकी शादी. Can we just praise the Ramsha and Khushal for Oh, their for amazing sure, for performances? sure. I am so impressed with them, and of course Sarvat. I fear that Sarvat's character may end up like Suraya Pupu, in that we think there's something behind the button and there's nothing, right? They should end up with each other. Gulmeher and Miran. अच्छा, this is I keep watching and I'm thinking, अगर इतने ही ये दोनों बंधे हुए and they get along so well, take the final step or accept each other as husband and wife, और Spare उस us. चीज को छोड़े. Yeah, Spare us the misery. उस बच्ची की भी जान छोड़ो, फिर उसकी लाइफ इस वक्त ना, दिस इज द परफेक्ट पॉइंट टू इंट्रोड्यूस कैरेक्टर नंबर 4. yeah. You Not introduce like Rashid a Bhai. I'm sorry, not Rashid Rashid Bhai. You Bhai. need to stay Rashid No, Bhai. नहीं नहीं. No, like I'm saying, who's a handsome young man who we can introduce? Namir at this point to Yeah. come into Where is Nisa's life. Osama, by the way? Oh Osama should get yeah, the best experience Osama as should the have come right now. anti-Malik. हाँ, माहौल बदल देता उसामा पूरा. खैर, Yeah. अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं जिनकी शादी उनकी शादी. फेवरेट 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 ड्रामा. लव इट लव इट लव इट सो मच. इट इज लाइक लर्व 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 ये लर्व. कितना रिलैक्सिंग होता है, because you get this headache with Manto and then you go to जिनकी शादी उनकी शादी and you're like, yes, just you're floating, you're on vacation, you're So good, relaxed, so it's good. beautiful. It's Bahaj is so like a treat sight for sore eyes. That scene where he's he's like, so much charm in him कि वो इतना बुरा उसका कैरेक्टर. इफ यू लुक एट अली सी, ही इज थिक, ही इज कंप्लीटली थिक, उसे कोई रिडल नहीं समझ आता, और इस चीज का पता है कि आई एम थिक, सो ही इज काइंड ऑफ लाइक कनिंग. सो नादो को ना आगे लगाया हुआ, नादो तुम आ जाना ना, हम रिडल सॉल्व करेंगे, और खुद साइड पे ना जैसे आई एम टेकिंग अ नैप, तुम ना वो काम करो जल्दी से, राइट? एंड ही इज नॉट अबाउट बीइंग economical with the truth और किसी को यूज करना. एंड एज आई रोट आई थिंक इन ट्वीट और समथिंग, डिलेड एथिक्स. हाँ. बाद में ख्याल आता है शायद ऐसा नहीं करना चाहिए ना. अच्छा, और द फेवरेट बिट इज के हाँ वो मैं जिनजादी से प्यार करता हूँ. लाइक जैसे कि आज मैंने लंच में ये बिरयानी बिग खानी है. डील, बिग डील, जिनजादी से शादी करना चाहता हूँ एंड मैं वो हम बन शेख है, जाते. हम हट है, कोई बात नहीं. हाँ, जल थोड़ी सी पोटैटो पोटैटो. लेकिन ये ये कि माय गॉड, दैट सीन इज सो फनी, दैट सीन इज सो फनी. अली एंड अरसलान नसीर, रानियाजी, वहाज, रुमैसा, द इरफान मोती शकीब वाला. सहर, वो ओ भाई, सबको क्लैपिंग. अच्छा, जुमले बहुत मजे के हैं. मुझे तो मैं बैठे बैठे ना दोबारा रिपीट करके मैं वो सीन देखती हूँ तो मैं हंसती हूँ. मुझे इतना देखो यार सदा, मुझे लगता है हम लोग ना डिप्राइव्ड हैं ऑफ गुड कॉमेडीज. हमारे हम्म. पास वो आती हैं, वो स्लैप स्टिक रमजान ड्रामा, या फिर वो दिल गाली वाली गली में जैसा हेडेक, या फिर ये कि वो जो बिल्कुल ही आउट देयर आसपास. तो वी आर डिप्राइव्ड ऑफ इंटेलिजेंट कॉमेडी, एंड जिनकी शादी उनकी शादी इज सच इंटेलिजेंट कॉमेडी कि मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए ये ट्रीट है. ये हम लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है कि हमारे पास ये ड्रामा है. बिकॉज मैं कब हमेशा कहती थी कि ऐसा नहीं, हमारे पास अच्छे राइटर्स नहीं है, लेकिन आप उनसे क्या लिखवा रहे हो यार. लिखवाओ उनसे, कॉमेडी लिखवाओ. Were you scared a little bit when Ramesa was making those faces in front of the mirror? मैं थोड़ी सी डर गई थी when she was doing that. I mean, this is a horror comedy, right? And I was a little scared. I was kind of No, surprised the at drama is myself. scary. The कर रही हो? drama is scary. Especially there are moments जब वो हल्के से दरवाजा खोलती है. अच्छा, शहर भी बड़ी scary लग रही थी. But that हम्म. scene is so good where she's like threatening खुशी is threatening नादिया, and then वो. हाँ, हम्म. और फिर वो मतलब वो एक लड़के के ऊपर एक मजे की डिस्कशन हो रही है. बड़ा मजे का सीन था वो भी. Actually, this is the funniest thing with the characterizations. Have you noticed both the girls are actually very sincere, right? हाँ हाँ. हालांकि she's a YouTuber and she's हम्म. a jinn, And I right? like that they didn't go into the cat fight Yeah. domain. I like वो that. मतलब दोनों तमीज से हैं, हाँ. and they respect the object that they love. The bad one is actually Ali C, right? Who's going to use people and But अच्छा I चलो ये love कर लेते हैं. और that what is, character. और जो गोस्ट उसके दादा की आती है या उसके अब्बा की आती है, सोना, कम सोना, हम्म. राइट? इतना हम्म. सोने की जरूरत नहीं है, कुछ काम करो.
अच्छा अच्छा, मुझे फनी भी यही लगता है ना कि वो बेचारा, ही इज द एपिटमे ऑफ लाइक अ लूजर। लाइक ना। वो लूजर जो उसके, एंड यू नो इट्स अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है वेयर एवरीथिंग हिंजेस ऑन द लूजर। इसकी हम्म, शादी होगी तो ये लेकर आएगा, इसने जिनसे मोहब्बत कर, जिन जाति से मोहब्बत कर ली है, ये कर लिया वो कर लिया। एंड यू लाइक भाई तू कितनी मुसीबतें फैलाएगा, तू कोई मसले का सोल्यूशन भी निकाल। और सोल्यूशन भी पुट्ठा सोल्यूशन है कि मैं उसे मोहब्बत के झांसे में, तो मैंने वो गलती से आ गई है, तो अब मैं उससे जरा काम ही निकलवा लूं। हर तरीके से लूजर है ये आदमी, बट स्टिल सो एंडियरिंग। एंड अगेन, जो मैं तलाक को मतलब प्रेस करी थी, वही मैं वहाज को प्रेस करती। खैर वहाज जो है ना, मुझे लगता है कि बिकॉज वो जरा तला से ज्यादा सीजन्ड है, बहुत अरसे से काम कर रहा है वहाज, तो और वहाज के अंदर वो स्किल्स ज्यादा डेवलप्ड हैं वहाज की, बिकॉज वो बहुत अरसे से उसने बहुत वैरायटी और डाइवर्सिटी की है रोल्स की। जो कि तला को भी टाइम है, इज ओनली 3-4 ड्रामाज ओल्ड, बट वहाज हैज बिन अराउंड फॉर व्हाइल। एंड सर, वहाज की एक और बहुत मजे की बात क्या है, वहाज इज अ जेन्युइनली कॉमेडिक एक्टर। एक उसकी yeah, जेन्युइन he टैलेंट has है the कॉमेडी sense का। of humor. That I feel that he is a humble person inside. He's not this kind of like, there's a lot of self-awareness in his बट यू acting. कांट बी हाँ, कॉमेडी कॉमेडियन विदाउट सेल्फ अवेयरनेस। एंड जब मैंने उससे बात भी की थी ना, मैं वही पहले बार भी वीडियो में कहा था कि मुझे हैरानगी हो रही थी कितना वो जो कितना। नकली इंटरव्यू था वो आपका, जो मेरा नकली इंटरव्यू था जो मैंने एआई से बनाया था। when you just made up, हाँ, मैं right? एआई से बनाया था, तो वो इस इंटरव्यू में भी जिस तरह वो बात कर रहा था ना, मैंने कहा यार दिस इज ऑलमोस्ट बॉर्डरलाइन, मतलब बॉर्डरलाइन क्या, प्रॉब्ली जीनियस ही बंदा है वो। बिकॉज वो जिस तरह बात कर रहा था ना, मैंने कहा ओ, दैट इज व्हाई ही इज एबल टू abandon his sense of self when he is Alisi, and when he is Alisi he is behaving like, "हैं? ये क्या हो गया? ओह अबाजी आ गया ख्वाब में, अबाजी नहीं मुझे बोला, ये तो रिडल मुझे समझ नहीं आ रही।" एंड आई एम अच्छा, लाइक, ज्यादा सोचता नहीं है, हैव यू नहीं, नोटिस दैट? जगह कि नहीं है ना कैसे दिमाग में। बोलते इतना जगह सर नहीं, खा के ना। जगह नहीं है दिमाग में, बाकी क्रैप बसा हुआ है, तो जगह नहीं है दिमाग में ज्यादा इंटेलिजेंट थॉट्स की। और हम्म, और मुझे ये भी लगता है कि जैसे वो इसमें राइटिंग भी बहुत अच्छी है। And I हम्म, think it is very smart of Vahaj to take on this role, because you know what happens is when you do a role like this, audience gets to see not just you as a हम्म, brilliant actor, but it also gets to get a taste of what can be done if there is a good script and a good actor paired together. So I think that this is just genius of Vahaj. It's the beauty of Sair Khan. Sair Khan is also amazing in that, in those scenes. She's vicious at the same time, innocent at the same time, powerful. So I you really like her. organic actress. I'm Oh, kind of very organic. the I right. wish you I had. I wish you had more range scenes of में, her. have you noticed how her career graph has gone? छोटी सी उम्र में, and it's like one hit after another, one hit after another. This girl, Hmm. even Fark was a big hit. हम मुझे Hmm. शायद पसंद आया. फर्क, रंग महल, वो एक दो और भी इसके ऐसे ही Fairy ड्रामे थे। Tale. I think maybe the beginning one, I think she may have done with Usama. I can't remember her first one, right? On her, Hmm. but that may not have gone under the radar. But otherwise, I think that she's had a very good career, and नहीं नहीं, she's शी इज एन एक्टर, शी इज सो ब्यूटीफुल, एक तो शी इज सो प्रिटी। मतलब बहुत कौन किससे मोहब्बत नहीं, क्यों मोहब्बत नहीं करेगा अली से, उससे यार इतनी प्यारी है वो। तो एक तो वो बहुत प्यारी है, दूसरा ये कि आई थिंक वो टैलेंटेड बहुत ज्यादा है, बहुत टैलेंटेड है। उसको भी डाइवर्सिटी ऑफ रोल्स करने चाहिए, उसको कॉमेडी और करनी चाहिए। she tends to pick good stories. Have you noticed हम्म। that? का तो इधर उधर हो जाता है, right? I mean, मुझे नहीं पसंद था, but अब उसके otherwise, फैंस तो जफा के पीछे भी पड़ गए थे, मुझे लग रहा था जफा भी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी उसके I लिए। really I appreciate really her. liked her, and I loved her performance as Andalib. So I thought that Jaffa was also a really good script. Sort of last but not the least, एक दो ड्रामे और हैं गाइस, अगर आप लोगों ने देखने, लोग कहेंगे जी केस नंबर तो 9 के ऊपर। होल्ड ऑन, रमेशा को भी तारीफ करनी है. हाँ, वेरी गुड, She did वेरी really well. वेल हेल्ड पोजिशन। जैसे वो मैं And कहती हूँ from ना, very क्रिकेट, seasoned actors or big actors, अगर big क्रिकेट stars. आप लोग देखते हो, खैर कौन नहीं देखता इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट, लेकिन जो क्रिकेट में एक होता है ना आपका, एक ऐसी पोजीशंस कभी कभी क्रिकेट में फील्डिंग में होती हैं जो बड़ी क्रिटिकल होती हैं। Hmm. स्लिप की पोजीशन होती है, और बाउंड्री पे जब मैच खत्म हो रहा होता है तो बाउंड्री पे आप एक बंदा बैठा देते हो, और तो अगर वो बड़ कैच ड्रॉप कर देना तो बर्बादी। तो मुझे लगता है कि कभी कभी जो ऐसे एक्टर्स होते हैं ना, जिनका रोल वैसे तो सिग्निफिकेंट नहीं लगता, लेकिन वो बड़ी क्रिटिकल पोजीशन पे वो खड़े होते हैं, क्योंकि I अगर think उन्होंने she वहां पे did ड्रॉप a कर lot of दिया ना, तो pretty फिर kind of. शीज, तो द ड्रामा वोंट वर्क जी। I don't, I can't, I won't get that analogy because she has quite a lot of screen time. She's actually very critical to the plot. And at हम्म। times
I'm kind of like Seher should have done that role, and she should have done that. And Possible. I personally think that Seher should have had more screen time if she Yeah, was the that main. is definitely there. I agree. I That's my do criticism. annoyed with this. But having said that, Romesa is holding out a part really well, and I expect Hmm. things from her. वैसे She's you've just put that thought in my head. Now I can't see. Now I see Seher as the YouTuber, the blogger. है ना? It works so well in my head now. It works so well. Why didn't she do this? That role should have been elongated. थोड़ा बड़ा करते उस रोल को और उसको इवेंचुअली इसके साथ मगर पता है वो क्यों असल में हुआ उन्होंने हम्म, इसलिए किया कि फिर वो हुक नहीं बनता। फिर या है तो ना? आपको शहर के लेवल की एक्ट्रेस मिलती, ढूंढते आप उसको लाइक आई डोंट नो, मे बी एन एक्ट्रेस ऑफ हर लेवल, क्योंकि रोमैसा तो न्यू भी है और अभी उसने इतने सारे ड्रामे किए हैं लेकिन वो शहर के लेवल की नहीं है। ताकि फिर ऑडियंस जो होती है ना वो कहती है अच्छा हु इज द हीरो गोना गो फॉर, बिकॉज इफ यू हैड रोमैसा एज अ जिन पीपल वुडंट बी दैट कि अच्छा जिन से शादी होगी क्या होगा। वो कहते हैं हाँ नहीं ये तो उसने शहर के साथ ही जाना है। तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट के केस में Easy there. हम्म, केस नंबर 9 किसी ने देखना हो तो देख ले, बहुत टेंशन वाला ड्रामा है और बहुत परेशान करने वाला ड्रामा है। हम्म। इसके अलावा मासूम जो देखना चाहता है वो भी देख ले, एंटरटेनिंग ड्रामा है, प्योर एंटरटेनमेंट है, कुछ कमाल का नहीं है उसके अंदर, बस एंटरटेनर है। और अब जो मुझे जिस पे खत्म करना है क्योंकि आई एम वी आउट ऑफ टाइम इज दिल ढूंढता है फिर वही, स्टारिंग ज़ारा नूर अब्बास एंड जाहिद अहमद। Okay, you're gonna have to tell me what has happened lately. I have not been able to catch up on it. So, So in the drama, Zahid Ahmed's family um is ridiculous, especially the mother, Rubina Ashraf जो है वो बहुत ridiculous तूने मेरे behave। बच्चे को पागल किया है। तुमने किया है और ये कैसे, कुछ पागल नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, ये तो तुमने सब कहानी बनाई हुई है एंड यू नो दैट ब्रोक माय हार्ट। आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट, कुछ ज्यादा बात करने को नहीं है, इट्स जस्ट अ ग्रेट ड्रामा। इफ यू हार्ट ब्रेक के लिए देखना है तो प्लीज देख लें, बहुत हार्ट ब्रेकिंग चीजें हैं इसके अंदर। लेकिन ये कि थोड़ा अवेयरनेस के लिए भी देखें, मुझे लगता है उन लोगों को देखना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में किसी को देने के लिए वक्त है तो ये ड्रामा देख लें, क्योंकि ड्रामे में बहुत सारी वो बातें दिखाई हुई हैं जो उन लोगों की रियलिटीज हैं जो इस तरह के मसाइल से गुजरते हैं, दरपेश होते हैं। तो प्लीज ये ड्रामा उन लोगों के लिए देख लें अगर देख सकते हैं तो। मुझे जो ड्रामे की और एक दो बातें अच्छी लगी बस मैं वो करना चाहती हूँ, उसके बाद भी रैप अप के। ड्रामे के अंदर एक तो ये रियलिटीज बहुत करीब से दिखाई हुई हैं। दूसरी चीज मुझे अच्छी ये लगी कि हम जिंदगी में जब हम बहुत रियल पेन से गुजर रहे होते हैं तो कभी कभी जब आपको थोड़ा सुख का सांस मिलता है तो हम उसके लिए गिल्टी फील करते हैं, हम उसको डिमोनाइज करते हैं। हाउ डेयर शी गो एंड डू समथिंग व्हाइल हर हस्बैंड इज गोइंग थ्रू दिस। भाई वो जिंदगी कैसे जिएगी, उसकी जिंदगी तो वैसी है ना, उसको जीना तो है, आगे तो जाना है, तो अब वो उस पेन के थ्रू गुजर के ही आगे जाएगी। तो आई लव दैट दे आर शोइंग अ वुमन taking as much charge of the life as possible given the life that she has. So I think that was really amazing. There's Zahid Ahmed is amazing in this, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, बहुत अच्छे एक्टर हैं and I'm glad that he is doing this role and he was chosen for this role. Kudos to Rida Bilal and kudos to the director, kudos to Zara Noor Abbas, Zahid Ahmed, the child actor रुबीना अशरफ, इतनी वेनमस बनी हुई है वो, ओए होए होए होए, बहुत ही अरे वेनमस। जब वो बनती है ना तो हाँ तो क्यामत की। वो क्या कयामत की बनती है वो। खैर तो ये था हमारा कैच अप। सदफ, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड? यस, आई वांटेड टू टॉक अबाउट जो टीजर्स आए हैं मेरी। मेरी जिंदगी है तू, हाँ, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट, व्हाट डिड यू मेक ऑफ दैट? I'm not sure. I think that, and this is one of the things that I think they're playing with us. It looks like an obsessive love story. I हम्म। didn't like, maybe I'm losing my sense of humor. Please forgive me, guys. I love Bilal Abbas. साफ जो हाँ, बात है, इट इश्क वोंट मुश्क सेव यू, इट वोंट सेव कमाल। यू। But there was one line that I didn't like. ये तो मौलवी लेके आ गया है, right? हम्म। कौन करता है ऐसे? And then I mean it's, and then वो खड़ा होके ना उनके डोर स्टेप पे, तेरे से तो शादी हो नहीं सकती, तेरी बहन से ही करूंगा। I mean that is premise for murder in a lot of cultures, right? कि आप किसी की हम्म। डोर स्टेप के ऊपर खड़े हो, मैं तेरी बहन से शादी करूंगा, right? I mean who the hell are you? बहनें इतनी आसानी से दी नहीं जाती। I didn't like पता नहीं क्या स्टोरी है। अच्छा, मुझे किसी ने कमेंट में लिखा कि it. आपने वो रीट्वीट किया है कि या आपने पोस्ट किया है कि ये तो एक दानिश तैमूर का ड्रामा लग रहा है, भाई लग तो रहा था पोस्टर से, एंड इट वाज अ जोक, आई रीपोस्टेड इट एज अ जोक। एज एन ओजी बिलाल अब्बास फैन, एक तो सबको बताना पड़ता है कि भाई हम ओजी फैंस हैं, हम ओजी फैंस हैं, आप लोग बाद में आए। पड़ेगी कमेंट्स में। हाँ मार तो पड़ेगी, चलो खैर चलो है, पढ़ लो, इट्स कोई ओके। ना।
इट्स ओके, ऑल इन अ डेज वर्क। आई थिंक दैट बिलाल अब्बास जो हैं वो वही कर रहे हैं जो वो करते आए हैं, लेकिन फिर भी बिलाल की क्योंकि एक टैलेंट है, बिलाल की एक प्रेजेंस है, तो A वो, very talented actor. ओ Come on. What do you mean एक्सट्रीमली by जो एक्सट्रीमली। करते रहे हैं? What do you mean by जो हाँ, करते रहे हैं? नहीं वो जो करते रहे इसका मतलब ये कि जो उनका हुलिया है ना वो इश्क मुर्शिद वाला ही है, कुछ खास मुझे फर्क वो नहीं नजर आ अच्छा, रहा। उन्होंने कोई चेंजेस नहीं लाए हाँ, ना बाल अपनी में ना कपड़ों गेटअप में, में, हाँ लुक। कोई चेंजेस नहीं है उनके, तो जो कि होने I चाहिए। guess when you're good looking, you don't need हाँ, to. कोई बात नहीं है, ऐसे ही बिलाल बेटा सुबह उठ के आ जाना बस सेट पे। तो वो उन्होंने किया हुआ है, लेकिन देन अगेन देयर इज टू मच व्हिच इमरान अशरफ इज डूइंग इन मासूम, व्हिच इज लाइक डूड स्केल इट डाउन। तो है ना? एनीवे, बट कमिंग बैक टू मेरी जिंदगी, तो मेरे लिए हानिया आमिर स्टूड आउट द मोस्ट। है ना? Hania was eating it and how. And I think that this she will be again the most interesting thing about मेरी जिंदगी टू so far, जो मुझे लग रहा है। I can be wrong of course, because बिलाल के सामने खड़ा होना भी बड़ी बात है। बिलाल is insanely talented। बिलाल खा जाता है सीन्स, बिलाल पकड़ लेता है सीन्स को, बिलाल घर कर जाता है, मेमोरेबल बना देता है सीन्स को। तो बिलाल भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आई एग्री विद यू दैट दिस सीम्स लाइक अ टॉक्सिक हीरो। दिस डजंट सीम लाइक अ हीरो यू वांट टू रूट फॉर, दिस बट डजंट सीम थोड़ी लाइक अ। सी उन्होंने ना, टू मेक इट एक्सेप्टेबल, थोड़ी सी बीच में ना उसको वनरेबल एंड कॉमेडी वाले वो लाइनर्स, वन लाइनर्स डाले हैं। लेकिन आपने लेकिन एक चीज नोट की है कि जो राधेन शाह के जो कॉमेडी होती है वो इसी तरह की होती है। हम्म वो ऐसी ही जुमले होते हैं उनके, इसी तरह के मोमेंट्स क्रिएट करते हैं वो। देखें, हमने जिनकी शादी उनकी शादी की बात की है, जिनकी शादी उनकी शादी में जो कॉमेडी क्रिएट होती है वो बड़ी जेंटल कॉमेडी है, विच अगेन आई कीप सेइंग वी मिस, बिकॉज जब अरसलान नसीर का कैरेक्टर सिद्रा नियाज़ी को कुछ बोल रहा होता है, या वहां जो स्टुपिडिटी में अपना सिचुएशन क्रिएट करता है, देर इज एन endearing quality, there is a vulnerability to the main character who's creating the comedy. You should not, as a power, as a character who has the power, हम्म punch below your weight to make the audience laugh. If you're doing that, that's the lowest level of comedy. आपको अपनी vulnerability के ऊपर, जैसे there is a reason why जाकिर खान is loved so much in the Indian comedian। जाकिर खान जो है वो जो कहते हैं सख्त लौंडा, जो उनका टर्म पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था, तो that was a, okay, so हम्म he's a very popular Indian comedian. So he mainstreamed this self-deprecating kind of humor, जिसमें वो अपनी कहानी एज अ मिडिल क्लास और नॉट सो गुड लुकिंग इंडियन वो ये कॉमेडी करता है। तो उसके लिए, इसलिए लोग उसको पसंद करते हैं, रिलेट करते हैं। आपकी एक सेंस ऑफ एम्पथी जाती है उसकी तरफ, तो आप द लाफ्स कम इजियर। आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ ट्रिक। L's character is coming off as arrogant. Arrogant. It's coming off as arrogant and it's coming off as mean. Now, Hmm. there is a fine line between being mean and being funny. Now, you can be mean, like, Look at Wahaj's character. yeah, He's also a even little mean. Arsalan Nasir's. Arsalan He is Nasir भी kind थोड़े of snarky। they are mean, लेकिन वो, हाँ। I think it's a question of charm and the way things are framed as well. हम्म। वो किसी के साथ इसलिए, I think, अच्छा, this is my point. वो जो Situation। दिया है ना नादो, जो the YouTube character to who Alici is being mean is हम्म। kind of, she has trespassed, hasn't she? She's Yeah, crossed a few limits. तो थोड़ा सा pushback अगर वहाज कर रहा है, जैसे they were using him, right? And this is it's the what I love situation about. they created ना। No, सैयद no, नबील जो राइटर हैं। Nadia and her mother, Nadia Afghan, right, and हम्म। Ramesh Khan's character, they हम्म। had gone over the limits. They'd been rude. They'd been a bit arrogant. हम्म। And actually, in the beginning, Alisi helped Nadia with a car, हम्म। didn't he? हम्म। Right. हम्म। So therefore, if he pushes back a bit, whereas we can't see the context here, मुझे बड़ा अजीब लगा. मैं That आपको वही line, बता रही हूँ ना कि, मैं शादी करूंगा, was kind of like, मैं आपको वही बता रही हूँ कि सिचुएशन ऐसी जब क्रिएट हो जाती है, जो राइटर क्रिएट करता है, तो डायलॉग जब लैंड करता है, फनी डायलॉग जब लैंड करता है, तो आप उसको अप्रोप्रिएट या इनअप्रोप्रिएट की नजर से देखते हैं। अगर आपने उसको देखा ही सिचुएशन में ही ऐसा हो गया कि वो दरवाजे पे लड़की के आके भाई को बोल रहा है कि तुझसे तो शादी करनी चाहिए, तेरी बहन से करूंगा, ही वाज वेरी फनी, बट इट वाज आल्सो काइंड ऑफ मीन एंड इट डिडंट मेक मी लाइक द कैरेक्टर। इट वाज फनी, आई कैन इवन लाफ एट दैट kind पॉइंट। of immediate dislike button pressed. हालांकि Ali Bilal ना, but तो let's see the but context. Let's see. exactly, Yeah. exactly. Musaddiq Malik is directing it, and Bilal Abbas and Hania are there. You have them as Anya main is leads. looking amazing. I like Anya in this role. I would never class her as a lady doctor, but there Acha, you go. And funny. she's playing it really well. Funnily enough, Hania is also doing what she's doing, exactly what she's done before. Hania is the same Hania. Hania is Hania.
in the role. Hania is I Hania. don't. I think this time, let's see. I'm going to give her some benefit of the doubt. I noticed she's much more. You know how I think Mahira Khan said that after she'd done a movie or whatever, I'd shed a skin, Hmm. right? I feel like Hania. I don't know when this was made, but Hania में थोड़ी सी ना ठहराव मुझे नजर आ रही है that I saw in Anna, This is right? not old, by the way. This is not one of those dramas जो कि 4 साल When was पहले this शूट हुए made? थे. When was this made? Within the past year. Okay, so I feel like I saw the This Hania is that. after कभी मैं कभी तुम, I think. ओके सो Yeah. लाइक इन इवन इन कभी मैं कभी तुमसे ज्यादा मुझे उसमें ठहराव नजर आया बट वी आर रीडिंग टी लीव्स क्योंकि हमें हाँ स्टोरी बिल्कुल, अभी कुछ भी से नहीं क्या है. पता लगना हमें है गालियां देने से पहले सोच लेना भाई, कि अभी हमने राइट कुछ भी नहीं डिसाइड किया है. अभी हम सिर्फ ऐसी हवा में जैसे बातें कर रहे हैं वही बातें कर रहे हैं. हो सकता है राइट अभी जैसे मंटो के ऊपर हमने शुरू में बहुत तारीफ की थी, बाद में कहा यार ये क्या है, फिर आ गए मंटो के ऊपर, फिर आ गई मंटो के ऊपर. लेकिन इसी तरह मैं इसके लिए भी कह रही हूँ, हो सकता है अभी मैं ये बात कर रही हूँ, मैं हो सकता है आज से 8 हफ्तों बाद बिल्कुल अलग ट्यून सिंग कर रही हूँ. सो आई डोंट नो. सो एनीवे, and that's the power of dramas isn't it हाँ that it's an ऑब्वियसली unfolding story आपको स्टोरी कैरेक्टर्स बदलती के है. आर्क हाँ हाँ बिल्कुल या बिल्कुल बिल्कुल. सो थैंक यू सदफ फॉर योर इनपुट एंड फीडबैक एज ऑलवेज गाइज. लेट अस नो व्हाट यू थिंक. फॉलो सदफ ऑन हर ट्विटर एंड इंस्टाग्राम. मुझे भी आप फॉलो कर सकते हैं. जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको वेलकम. जो मावरा का इंटरव्यू देख के इधर आए. मैं इंटरव्यूज बहुत कम करती हूँ, तो अगर आपको ये लग रहा है कि अगले हफ्ते फिर कोई मजेदार इंटरव्यू आने वाला है, नहीं होता ऐसा. बिकॉज आई एम सिटिंग इन दुबई, और यहाँ पे जो आते हैं फिर उनके टाइमिंग्स देखने पड़ते हैं. इट्स एंड आई डोंट हैव अ टीम, आई एम द टीम. सो इट्स अ बिट ऑफ अ नाइटमेयर कोऑर्डिनेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट जो मुझे टाइम देते हैं, प्यार से बात करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया. आई वॉन्ट टू थैंक मावरा वंस अगेन. आई वॉन्ट टू थैंक सदफ. आप हमेशा हर वीक इतने मुसीबत से निकाल के मुझे टाइम देती हैं. बहुत शुक्रिया आपका. गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अपने जान हाथ माल से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाइएगा. और वापस आइएगा मोर वीडियो रिव्यूज के लिए. तब तक के लिए खुदा हाफिज. थैंक यू. हाफिज